हाँ बिल्कुल ठीक है जी, फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हमारे आज के स्पीकर मैथिली शरण गुप्ता जी ने ज्वाइन कर लिया है, एंड आपने भी ज्वाइन कर लिया, तो आपकी परमिशन हो तो सेल वी स्टार्ट। जी हाँ, बिल्कुल शुरू करें। ठीक, तो आयुष स्टार्ट प्लीज। यस सर। सिमरन जी, प्लीज स्टार्ट। Take up one idea. Make that one idea your life. Dream of it, think of it. Live on that idea. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success and this is the great way spiritual giants are produced. Namaskar sabhi ko. I, Simran Singh, on behalf of Vivekanand Manch, on the occasion of National Youth Day, would like to welcome Vice Chancellor Shri Raj Nehru Sir, Chief Guest Maithili Sharan Gupta Sir, Faculty Coordinator Dr. Pradeep Dimri Sir, DSW Lakhvinder Sir, DDSW Anuradha Ma'am, Co-Coordinator Surat Sir, Pawan Malik Sir, Professor and friends. National Youth Day is celebrated on January 12th every year in India to honor the birth anniversary of Swami Vivekananda, a spiritual genius of commanding intellect and power. The speech he delivered at the world's first religious parliament in Chicago in 1893, which began with Sisters and Brothers of America, immortalized the ideas the monk believed in. The intention behind National Youth Day is to empower young people through the life and ideas of Swami Vivekananda. Let us begin this exciting program with the lighting of the lamp. कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। Now, I would like to call Chairperson of Electronics Department and our Faculty Coordinator Pradeep Dimri Sir, who has been always supportive and keeps motivating us for the better. Over to you, sir. थैंक यू सिमरन। सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई, स्वागत। आज हमारे लिए, विवेकानंद मंच के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि विवेकानंद मंच जिनके नाम से हमारा ये मंच है और जिनकी प्रेरणा से ये चलता है, स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती आज है। और बहुत ही हमारे लिए गौरव का विषय है कि इस अवसर पर अपने जो विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान राज नेहरू जी अपने बीच में हैं। हम सभी सुपरिचित हैं उनके व्यक्तित्व से, और जिन किसी ने भी उनका कोई भी छोटा संस्मरण या उनका स्पीच, भाषण, वक्तव्य, कथन सुना होगा, तो ही नोस कि he is a man of ideas, and we are greatly honored, sir, that you have accepted our invitation to be among us at this point. And we are greatly honored that we are also blessed with the presence of Sriman Maithili Sharan Gupta ji. And what about him? आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अभी अभी अगर कुछ ग्लिम्स उनके बारे में पानी हो तो YouTube पे जाकर क्राइम फ्री भारत चैनल को देख सकते हैं, और वहां आप पाएंगे कि कितना उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है और किन विषयों पर वो कार्य जो है कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा उनके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि यू विल लिसन टू हिम, बट बेसिकली ही इज एन इंजीनियर, एंड after doing his
a graduation in mechanical engineering. He has done his MTech in industrial engineering. Then he is also master in public policy and sustainable development. Then he is also holding PG diploma in disaster management, human rights from. He is also holding MBA in human resource. Then he is also a man of law, and his experience as a police, personnel varies from fighting the counterinsurgency in the Naxal affected areas. Also, he's also involved in the police reform, jail reform, and now he's working, I would say, very quietly for making the change in the society. So we are greatly honored, sir, that you have accepted our invitation, and I'll not be standing between you and our students. May I introduce our students that we are a state government of Haryana University. It is Jagdish Chandra Bose विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद, और मुख्यतः हमारे यहाँ जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कोर्स हैं, लेकिन अन्य कोर्स भी हैं। और जो हमारी 1969 से एक लीगेसी है कि एनसीआर और पूरे इंडिया को जो है बेस्ट टैलेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल मैन पावर अवेलेबल कराना, वो हमारी लीगेसी रही है। तो विदाउट फर्दर एडो आई वुड रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर सर टू speak to our student and bless them with his presence and his motivational thought, as he always does. Thank you, sir. I once again greet the Vice Chancellor of our university and the President of today's program, Shri Raj Nehru sir, with whom we all are very well acquainted. Sir has always been striving for better education and training of the university and students. I invite VC sir to say some words for guidance. Over to you, sir. Sir, आप mute हैं sir. Right. Am I audible? Yeah, now it is on. Okay. You want me to start, right? Right. सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि आज इस कार्यक्रम में मैं अपने कुछ शब्द रख सकूं, और आप लोगों को आज के इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। साथ ही में बड़ा अच्छा अवसर इस कारण से भी है कि आपने श्रीमान मैथिली शरण गुप्ता जी को आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। हमें उनका विचार सुनने का भी एक अच्छा अवसर आज पूरे युवा वर्ग को मिलेगा। ये दिन बहुत ही अहम दिन है और इस दिन के लिए सबको बधाई। इस कार्यक्रम को आयोजित करने की टीम प्रदीप डिमरी जी, पवन जी और बाकी अन्य प्रोफेसर साहिबान जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिस विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उन सबको भी पुनः एक बार मैं बधाई देता हूं। आज का दिन हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि युवा यूथ डे के नाम से भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है और एक ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है जिसने एक डेढ़ दशक पहले दुनिया को एक ऐसी मैसेज दी, जिस मैसेज के बाद दुनिया को जो भारत के प्रति एक विचार था कि ये जो भारत है ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, स्नेक चार्मर्स का देश है, उस भ्रम से पूरी दुनिया बाहर आ गई। विवेकानंद जी ने, जहां दुनिया भारत को थर्ड वर्ल्ड के नाम से जानती थी, वहां विवेकानंद जी ने कहा कि देयर इज नो थर्ड वर्ल्ड, देयर इज ओनली वन वर्ल्ड। और इसीलिए जो विवेकानंद जी का सार था कि वसुदेव कुटुंबकम, कि ये दुनिया एक परिवार के रूप में है, उस मैसेज को उन्होंने वहां पे दोहराया, जिसका परिणाम ये निकला
कि पूरे धर्म समाज में जो पूरा अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन उस धर्म संसद में कर रहा था, उनका भी एक जो व्यू था वो भारत के प्रति बदलने लगा। और आज हालांकि हम लोग जब 9/11 को याद करते हैं तो बहुत सारे लोग इस दिन को त्रासदी से, इस दिन को टेररिज्म से, इस दिन को एक बहुत बड़े टेररिस्ट के साथ जोड़ते हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को शायद याद नहीं है ये जो 9/11 की जो तारीख है, ये 9/11 की तारीख को हमें न्यूयॉर्क के लिए नहीं, जहाँ पे ये घटना घटी थी, न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए याद करना चाहिए, जहां पे जिस धर्म संसद सभा में विवेकानंद जी ने एक ऐसा उद्बोधन दिया जो विश्व हमेशा याद रखेगा। 9/11/1893 9/11/1893 को विध्वंस के लिए नहीं याद करना चाहिए, विश्व शांति के लिए याद करना चाहिए, जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपना उद्बोधन दिया था। 9/11 को आतंकवाद के लिए नहीं याद करना चाहिए, सनातनवाद के लिए हमें इसे याद करना चाहिए, जो मैसेज श्री विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने उस दिन हमें दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की मैसेज एक युवा के रूप में जिस प्रकार की मैसेज उन्होंने उस दिन पूरी दुनिया को दी थी, वो मैसेज एक ऐसे शख्सियत ने जब दी, उस मैसेज में से केवल विश्व के लिए नहीं, हमारे आज के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा उसमें से मिलती है। मुझे उनके कुछ कोट्स याद है, मैंने उनकी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रेट अप करने के लिए। उनका एक कोट बड़ा फेमस है जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी एक आइडिया को लो और उस आइडिया को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, उस आइडिया को अपने जीवन का एक संकल्प बनाओ, फिर उसे आइडिया को रोज उसको सांस के रूप में भी लो, उसे स्वप्न के रूप में भी लो, उसे अपने जीवन के अंदर उसको उतारो। यानी टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया your life, think of it, dream of it, live on that idea, let that idea become your brain, your nerves, your muscles, every part of your body, and ultimately you become that idea। और जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो जो भी आप कामना कर रहे हो और जिस धारणा से आपने उस कामना को किया होगा, वो कामना जीवंत रूप में आपके सामने आ सकती है। और उनकी इस लर्निंग में एक सबसे बड़ी चीज मुझे हमेशा दिखती है कि जीवन में किसी भी काम को करो तो उसे होश पूर्वक करो, उसे एकाग्र रूप से करो। और जब हम होश पूर्वक और एकाग्र रूप से और पूरे संकल्प की बात करते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है जो उनकी जो लर्निंग्स हैं वो है कि आप हेड, हार्ट एंड हैंड, यानी हेड को जब हम कहते हैं हमारी थिंकिंग, हम जो विचारते हैं, हमारे जो आइडियाज दिमाग में हैं, हार्ट से हमारा कहने का मतलब है हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस, और हैंड से हमारे कहने का मतलब है हमारी एक्शन। यानी हेड के अंदर अच्छे विचार हो, हेड के अंदर किसी के प्रकार कोई दुर्भावना ना हो, हेड के अंदर एक क्रिएटिविटी हमारे सामने समर्पित हो, हेड के अंदर कमिटमेंट हो, हेड के अंदर देश के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करने का, अपने परिवार के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करने का, अपने समाज के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करने का, हेड के अंदर केवल सेल्फिश आइडियाज ना हो, सेल्फिश थॉट्स ना हो। ये हेड का कॉन्सेप्ट है। हार्ट का कॉन्सेप्ट उनका कहने का था इमोशंस आपकी पॉजिटिव हो, आपके अंदर संकल्प पॉजिटिव हो, आपके अंदर किसी प्रकार का डिसवैल्यू आपके अंदर ना हो। और हैंड के अंदर मतलब आपका हेड अच्छा है, आप सोचते अच्छा है, आपके अंदर फीलिंग्स अच्छी हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो हेड, हार्ट और हैंड का मिश्रण है, यही एकाग्रता है। बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने हमेशा दिया, मुझे याद है उनकी एक पुस्तक में उन्होंने नचिकेता के बारे में एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया। मैंने नचिकेता की जो कहानी है, ये कहानी मैंने एक पुस्तक में पढ़ी है। एक नचिकेता जो थे, उनके पिता ने एक हवन किया था और उस यज्ञ में वो सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे थे,
और सेक्रीफाइस करते करते उन्होंने अपनी जो सारी चीजें जो उनकी किसी काम की नहीं थी वो उन्होंने हवा उस यज्ञ में दान में दे दी। तो नचिकेता बड़ा छोटा था और उसने पिता को देखा कि वो उन चीजों को दान कर रहा है जो उसके किसी काम की नहीं है, और उन्होंने पिता को टोका कि आपने उन चीजों को दान किया जो आपकी प्रिय नहीं है, ये तो कोई दान नहीं हुआ, क्या अपनी आप प्रिय चीज को दान नहीं करोगे? और पिता बड़े गुस्से में आके, क्योंकि उन्हें बड़ा बुरा लगा कि मेरी एक कमी को मेरे बेटे जो बड़ा छोटा था उसने इसको उजागर किया। आप अंदाजा लगाइए उस छोटे बचपन की उम्र में उसने ये चीज आभास की कि हम जब भी दान करते हैं तो हम वो चीजों को दान करते हैं जो हमारी प्रिय नहीं होती, हमें लगता है हमारे किसी काम की नहीं है, हम दानी भी कहलाना चाहते हैं और दान भी कर देते हैं। और पुत्र ने वो चीज उसके अपने पिता के सामने लाई, और उसके बाद ऐसा संवाद उन दोनों के बीच में चलता है जिसमें पिता पुत्र को कहता है कि तुम मेरी प्रिय चीजों में तुम्हें ही यम को दान कर देता हूं। और पुत्र ने उसको बड़ा सीरियसली लिया। आप देखिए कमिटमेंट क्या बच्चे की, कि बाप ने कहा कि मैं तुम्हें यम को दान कर देता हूं, और पुत्र जो है वो अपने घर से निकल पड़ता है यमराज से मिलने के लिए। और नचिकेता के बारे में आगे वो लिखते हैं कि मतलब ये वो लड़का था जिसका वर्णन इन पुस्तकों में है, कथा उपनिषद में है, कि जब वो फिर यम से मिलने गया, और यम से मिलने के लिए जब यम ने उससे पूछा, और उसमें भी बड़ा अच्छा संवाद है कि वो कई दिन तक इंतजार करता रहा और यम उसे मिला नहीं। तो फिर जब यम मिला तो उसके 3 प्रश्न थे यम, और यम जो था वो बड़ा हैरान हो गया वो सुनकर कि इस छोटे बालक ने इस प्रकार के प्रश्न, और वो प्रश्न किस संबंध में थे? डेथ के प्रति, जीवन के प्रति, आत्मा के प्रति, साल्वेशन के प्रति। तो यम बड़ा हैरान हो गया कि ये छोटे से बालक ने मेरे को इस प्रकार के प्रश्न पूछे जिसमें वास्तविकता है और वो शायद बताना नहीं चाहता था। तो यम ने बड़े प्रलोभन दिए नचिकेता को। यम ने उससे बहुत सारी चीजें देने की ऑफर की, उसे किंगडम देने की ऑफर की, उसे वेल्थ देने की ऑफर की, उसे कंफर्ट्स देने की ऑफर की, परंतु नचिकेता टस से मस नहीं हुआ। और नचिकेता ने कहा कि मुझे तो मेरे प्रश्नों का ही उत्तर चाहिए। और इस संवाद को विवेकानंद जी ने अपने कई संस्मरणों में दिया हुआ है कि जिस प्रकार से नचिकेता अपने आइडिया में, अपने कमिटमेंट में, अपने संकल्प में इतना प्रगाढ़ रूप से एंटर किया हुआ था कि वो टस से मस नहीं हुआ जब उसको इतने सारे प्रलोभन मिले, और उसने जो जीवन का लक्ष्य बनाया था कि मुझे क्या हासिल करना है, ऐसी परिस्थिति में जब प्रलोभन भी किसी रूप से आपको टस से मस नहीं करता, तो नचिकेता के प्रति वो लिखते हैं कि अगर भारत को ऐसे 100 नचिकेता मिल जाएं तो भारत का भाग्य बदल सकता है। और ये मैसेज युवाओं के लिए थी कि द कैरेक्टर ऑफ नचिकेता और उसकी जो स्ट्रॉन्ग विल थी, ये स्ट्रॉन्ग विल स्वामी विवेकानंद ने अपने बहुत सारे लेखों में उसको दोहराया हुआ। और उस कैरेक्टर को जो उनका जो कैरेक्टर था, उनकी जो नियम नियति नीति जिसको हम कहते हैं, जो उनके व्यक्तित्व में थी नचिकेता के, स्वामी विवेकानंद ने हमेशा उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत प्रगाढ़ रूप से अपने पुस्तकों में या अपने वाक्यों में उसके बारे में कहा कि अगर भारत को इस प्रकार के कैरेक्टर वाले यूथ मिल जाते हैं तो भारत का भविष्य जो है वो बदल सकता है। तो इसलिए आज के इस दिन में जब हम यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, मुझे लगता है युवाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज ये है कि जो भी काम करें अपने जीवन में, उस काम को किसी लक्ष्य के साथ जरूर जोड़ें। कठिनाइयां आती हैं, परिस्थितियां बड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं, हमें लगता है ये अब हमें नहीं करना चाहिए, ये हमसे नहीं होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जब युवा वर्ग इन बातों का स्मरण करता है कि किस प्रकार से विवेकानंद ने ऐसी कठिनाइयों के बीच में भी इस प्रकार की मैसेज को युवाओं के सामने रखा, मुझे लगता है ये एक अपने में एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। और जीवन में अगर हम हर किसी काम को इस एकाग्रता के साथ करें जिसमें हमारा हेड, हार्ट और हैंड, हम हमेशा कभी कभी क्या होता है कि जो इमीडिएट हमारे सामने है और उस इमीडिएट के कारण से हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि पता नहीं क्या होगा, इस प्रकार से करेंगे तो ये नुकसान होगा, लेकिन हम कभी कभी दूर जो नजर होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारे अंदर जो हमारे संस्कार होते हैं, हमारे जो संकल्प होते हैं, उसके प्रति हम लोग जागृत नहीं रहते। अगर हम अपने संकल्प,
अपने कैरेक्टर और अपने वैल्यूज को थोड़ा सा ठीक करें, थोड़ा सा जगाएं और थोड़ा सा उनसे कनेक्ट करें, तो मुझे लगता है दूर की चीजें भी हमें बड़ी समीप दिखना शुरू हो जाएंगी, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हम हर किसी काम को बहुत कमिटमेंट के साथ और बहुत ही आशा के साथ हम लोग कर पाएंगे, और अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास के समाज में, जीवन में हम और अच्छी खुशियां ला सकते हैं। तो आज के इस दिवस पर मैं आप सब लोगों को एक बार पुनः बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आज चर्चा रखी है जिसके लिए मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं कि ज्ञान पुरुष का सुरभि कुंज था, मस्तक पर वो अरुणिम, मुझे याद आ रही, मैं फिर से दोहराऊंगा, 30 बरस का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर वो अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन दारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद और आज के दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट, आपने जो बात की कथा उपनिषद की बात, तो आई वुड रिकमेंड कि हमारा विवेकानंद मंच का प्रत्येक विद्यार्थी ये जो नचिकेता वाली कहानी कथा उपनिषद से और छांदोग्य उपनिषद से एक बहुत ही बढ़िया कहानी है सत्यकाम जाबाला वाली, तो 2 कहानियों को आई वुड रिकमेंड टू आवर स्टूडेंट ऑल्सो, दे शुड रीड टुडे इटसेल्फ ऑल्सो। इसमें पूरा समझने के लिए पूरा जीवन का सार जो है इन 2 कहानियों में आ जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. I once again greet our today's chief guest, Maithili Sharan Gupta sir, a highly educated and experienced individual holding commanding positions in various departments of administration, policy making, vision development, and successful execution at various levels as Director General of Police Railways, Director General of Home Guard, Disaster Management and Civil Defense, Director General of Police, and having achieved numerable awards. Over to you, sir. Thank you. मैं सबसे पहले तो YMCA यूनिवर्सिटी का हृदय से आभारी हूँ और कि उन्होंने मुझे मौका दिया युवाओं से मुखातिब होने का। युवा जो कि अपने आप में ऊर्जा से भरपूर हैं और उस ऊर्जा को एक दिशा देने का। मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री राज नेहरू जी का अभिवादन करता हूं। मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी का अभिवादन करता हूं और सभी बच्चों को, सभी युवाओं को भी इस विशेष अवसर पर अभिवादन भी करता हूं और उनकी एनर्जी का आवाहन भी करता हूं। मुझे मेरा सोचना यह है कि आज के दिन हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकालें। हमारी एनर्जी हमारे अंदर है। यदि हम वसुंधरा कुटुंबकम की बात करते हैं, जो कि माननीय विवेकानंद जी ने भी कहा है, उन्होंने युवाओं की ऊर्जा की बात भी कही है। हमें एक तीसरी बात और याद रखना चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मतलब हम सब में वो शक्ति विद्यमान है कि यदि उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए तो आप जो है अपने आप में भगवान तुल्य हो सकते हैं। भगवान को पाने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है और वह एनर्जी जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर है, उसे जागृत करने की जरूरत है। जो नेहरू साहब ने, वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि आपका फोकस यदि होगा तो वो एनर्जी स्वतः जागृत हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि ब्रह्मांड में जितने भी ज्ञान हैं वो सब ज्ञान जो है कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि जब हम किसी चीज में रमा हो जाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट के, उसके समाधान स्वतः जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं और
कोई ना कोई उसका एक माध्यम बनता है, लेकिन जो भी माध्यम है वो उसे ये ना भ्रम पाले कि वो उसका बेसिकली प्रणेता है या वो सोर्स है। इस भ्रम से हमें बचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ज्ञान है, इट इज समथिंग लाइक समथिंग इज बीइंग रिलेड, और हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर लें और उस फ्रीक्वेंसी से हम रिसीव करके उस ज्ञान को, उस चीज को, उस सिग्नल को पाके, एंड देन वी विल बिकम द मीडियम दैट इट शुड बी ब्रॉडकास्टेड टू द वर्ल्ड एज ए होल। बिकॉज किसी भी ज्ञान का, स्पेशली अपनी वैदिक उसमें, खुद के लिए उपयोग जो है काफी हद तक वर्जित है। तो जो भी ज्ञान आ रहा है, यू आर जस्ट ए मीडियम, एंड उस मीडियम का लाभ जो है वो ब्रह्मांड को एज ए होल, ग्लोब को एज ए होल मिलना चाहिए, जिसमें आपका समाज, आपका देश, सब लोग सब समाहित हो गए। मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो एक गलत जो है दिशा है, क्योंकि आप स्वयं जो है, आपका खुद का शरीर जो है, आपकी खुद की बुद्धि, आपका खुद का दिमाग, इट इज नॉट योर ओन। आप एक आत्मा के स्वरूप में आए, एक आप कहना चाहिए आपकी उत्पत्ति हुई दो स्पर्म और ओवम से मिलने से, और आपका जो है, आपके अंदर जो स्पर्म सेल है, आपके अंदर जो स्टेम सेल है, उसने विभिन्न स्वरूप लिए, इंक्लूडिंग माइंड का। आपने जो कुछ भी लिया है वो यहीं से लिया है, चाहे आपका वो शरीर हो, चाहे आपका दिमाग हो, चाहे आपका ज्ञान हो। अब आप ये देखिए कि उस ज्ञान में आपने थोड़ी सी वैल्यू जोड़ दी और आप उसके मालिक हो गए। यह प्रवृत्ति एक गलत प्रवृत्ति है। मतलब ये मैं एक बहुत बड़ा इशारा कर रहा हूं, यदि हम उससे ऊपर आ पाएंगे तो हम इस देश को, इस ग्लोब को बहुत ज्यादा शक्ति से और बहुत फास्ट बढ़ा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वह चीज एक बहुत बड़ी बाधा बन रही है। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का देखेंगे तो बहुत सारी चीज, जैसा हमने एक्सप्लेन किया है कि आप स्वयं, यू आर ऑल्सो जो है एसेट ऑफ नेचर, यू आर एसेट ऑफ कॉस्मोस। आप इस कहीं से आप आए नहीं हैं, आप यहीं से उत्पत्ति हुई, यहीं पे बड़े हुए हैं। जो कहते हैं 5 तत्व आपके होते हैं, उन 5 तत्वों से आप आगे बढ़े हैं, और उन 5 तत्वों से, जिसमें आपका दिमाग भी सम्मिलित है, जो ज्ञान भी सम्मिलित है, आपने यहीं से लिया। उसमें छोटी सी वैल्यू आपने अकेली जोड़ी है और आप उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइटर हो गए। You do not have that right. I am saying there could be a bigger system which can take cognizance of your contribution. And यदि उसका कोई कॉमर्शियल होता है तो your contribution may be even financially compensated, but you do not have the right to block it. उस ज्ञान को सीमित करने का आपका अधिकार नहीं है। आज का ये सबसे बड़ा मैसेज मैं विवेकानंद जी की तरफ से जो ना आप लोगों को देना चाहूंगा। देखिए, हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हम सब लोग बहुत स्वार्थी हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि सीड या बीज का मूल गुण क्या है? एनीबॉडी लाइक टू रिप्लाई? जो बीज है, जो कि प्रफुल्लित होकर वृक्ष में कन्वर्ट होता है, उसका मूल गुण क्या है? अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना, मल्टीप्लाई होना। अब हम दुष्ट लोगों ने, हम सो कॉल्ड साइंटिस्ट लोगों ने उसको जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड में कन्वर्ट कर दिया। ये व्यवसायिकता की और लोलुपता की ये पराकाष्ठा है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? ये बहुत मूल मुद्दा है और कहीं ना कहीं सभी समस्याओं की जड़ों में समाहित है।
इसलिए इस मुद्दे पे मैं जरा जोर दे रहा हूं कि हम इतने स्वार्थी हैं कि नेचर ने किसी चीज का जो उसका मूल गुण रखा है, उस मूल गुण को भी हम अपने हित में दोहन करना चाहते हैं। तो हमने जेनेटिकली उसमें से वो जो है ना एलिमेंट बाहर कर दिए जो उसके प्रजनन के लिए, जो उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिससे कि आप उन बीजों को मुझसे ही खरीदे। मतलब हम आर्थिक लाभ लेने के लिए इतने ज्यादा लालची हैं। अब ये बात भी मानना पड़ेगी कि यदि हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे, प्रकृति से हटके बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमको जो है ना उसका दंड दे। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, उससे जो आप आटा बना रहे हैं या जो भी चीज आप खा रहे हैं, ये आने वाला समय बताएगा कि हाउ नेगेटिवली इट विल बी इम्पैक्टिंग यू। ये बड़ा रिसर्च का विषय होगा, और जब तक उसका असर आप समझेंगे तब तक ये बहुत लेट हो चुका हो। तो यहां पर मैं अपने युवाओं को एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने अंदर की ऊर्जा जागृत करो, अपने अंदर का ज्ञान जागृत करो, और अपने अंदर का स्वार्थ को मैं ये नहीं कहूंगा खत्म कर दें, क्योंकि स्वार्थ जो है स्वार्थ को हम यदि थोड़ा सा बड़ा कर दें तो वो पर्पज हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। मतलब यदि जो है ये बहुत इंटर रिलेटेड चीजें हैं, मैं उसको खत्म करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसको सेल्फ सेंटर्ड मत करिए, उसको अपने लाभ के साथ साथ जो है सबके लाभ से जोड़ देंगे तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो बहुत ही सकारात्मक ढंग से काम करेगी, सकारात्मक ढंग से, और उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत अच्छा होगा। साथ जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हूं, और एक बार जो बात हमारे प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी ने कही थी उसको मैं दोहराना चाहूंगा। मैं अपने सभी युवाओं से पुनः अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो है अपना मोबाइल यदि आपके हाथ में है तो उसे बाहर निकाल लीजिए, YouTube को आप जरा उस पर क्लिक करिए और उसमें सर्च करिए क्राइम फ्री भारत। क्या आप लोग वहां पहुंच गए हैं? आर यू ऑन द स्क्रीन ऑफ क्राइम फ्री भारत? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, may I request you to kindly subscribe it, because इसमें भारत की सभी समस्याओं का समाधान निहित है। मैं चाहूंगा इसमें ओवर द पीरियड एक समृद्ध भारत की भूमिका जो है इसमें छिपी हुई है। एज ए प्रेसिडेंट और एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म, हमने क्राइम फ्री भारत के लिए 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट जारी किए थे, और उस सब का भी पूरा डिटेलिंग इसमें है। उसमें हम जो कंप्यूटर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं, हाउ दे शुड कम आउट विद अ सॉल्यूशन, वो सब चीजें भी हैं। तो चूंकि आपकी यूनिवर्सिटी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा आई फील कि आपके लिए बहुत सारा दिशा निर्देश वहां छिपा हुआ है, बहुत सारा क्रिएशन वहां छिपा हुआ है, और मैं ये चाहूंगा कि उसमें आप सबसे फर्स्ट जो है वीडियो से शुरू करिए एंड सर्च इज देयर एनीथिंग फॉर यू। चूंकि हमारे अधिकांश उसमें आप देखेंगे कि मैंने अपना नाम के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, लिहाजा रीचिंग आउट टू मी वुड बी इजियर फॉर यू। आप आसानी से मुझे पहुंच सकते हैं मुझ तक। आपने सामान्यतः ऐसा देखा होगा कि वरिष्ठ लोग जो है वो अपना मोबाइल नंबर छिपाने की कोशिश करते हैं, और हमने कोशिश की है कि यदि मान लो किसी युवा के दिमाग में कोई अच्छा सा आइडिया आता है, और इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग व्हिच कैन इंप्रूव द वैल्यू ऑफ माय वर्क, देन दैट्स ही शुड नॉट स्ट्राइव टू रीच आउट टू मी। मुझे पहुंचने में उसे किसी संघर्ष की जरूरत नहीं होना चाहिए, वो आसानी से मुझ तक पहुंच जाना चाहिए। तो मे आई वंस अगेन रिपीट, देयर आर मोर देन 850 वीडियोज ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स। यह कह रहा है कि हम सर्टेनिटी के साथ
क्राइम फ्री भारत जो है जमीन पे उतारेंगे, और वो भी आप जैसे युवाओं के सहारे। पुलिस जो है उसको डीबर्डन करेंगे, और पुलिस उन कामों को करेगी जो कि सामान्यतः एक नागरिक को करने में दिक्कत हो सकती है या वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। तो पुलिस शुड डू द स्पेशलाइज्ड जॉब। नॉर्मल सभी काम जो है वो हमारे युवाओं को करना है। अब मैं एक क्वेश्चन फिर से पूछना चाहूंगा, अभी जहां पे भी आप बैठे हुए हैं वहां पर कितने पुलिस अधिकारी हैं? आप किसी हॉल में बैठे हुए हैं? ये वीडियो या ये जो चल रहा है किसी हॉल में भी चल रहा है, ऐसा मुझे बताया गया? नहीं सर, ये इंडिविजुअली देख रहे हैं क्योंकि आजकल सारा ऑनलाइन है। ओके, हरियाणा। चलिए, तो मैं क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछता हूँ कि जो भी चेहरे आप इस कॉन्फ्रेंस में देख पा रहे हैं, चाहे वो डिजिटली ही देख पा रहे हो, तो आप कितने पुलिस ऑफिसर उसमें देख रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूं, इसकी बहुत बड़ी वजह है। क्या आप जिस जगह पे बैठे हैं एक पुलिस ऑफिसर को कम से कम आप देख पा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं, वो एक ऑफिसर आप खुद हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको मालूम है कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं? और ये मैं कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक लीगल बात कर रहा हूं। क्या आप लोगों को ये जानकारी है कि यू आर लीगली ए पुलिस ऑफिसर? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। एक तो पहले मैं उद्घोषणा करता हूं कि आप सभी पुलिस ऑफिसर हैं, और आप पुलिस ऑफिसर हैं, एक सिविल ड्रेस के पुलिस ऑफिसर हैं। मतलब हमने जो है यूनिफॉर्म धारण की है, सरकार ने हमको उसके लिए वेतन दिया है। आप वेतन नहीं पा रहे हैं, आप यूनिफॉर्म धारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून ने इसको बंद कर लें। कानून ने इसे जो है आपको एक पुलिस अधिकारी की सभी जो है पावर दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला पावर जो आपका है, दैट इज द पावर टू रिपोर्ट। आप जो है थाने में जाते हैं और थाने में बात नहीं सुनी जाती है। आपकी बात इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि आप अपनी वेदना लेके जाते हैं, आप विक्टिम के बतौर जाते हैं। क्या आपको ये जानकारी है कि कानून की धारा सेक्शन 139 सीआरपीसी आपके ऊपर यह दायित्व डालती है कि यदि जो बहुत सारी लिस्ट है जिसमें कि अधिकांश महत्वपूर्ण अपराध आ जाते हैं, यदि वो अपराध आपके संज्ञान में आता है, यू आर नॉट द विक्टिम, दैट कम्स टू योर नॉलेज, यू आर लीगली बाउंड टू रिपोर्ट इट। और यदि आप उसे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, मतलब सीधा डिग्री। और सामान्य कोर्स में जब आप कोई अपराध करते हैं जिसमें आपको प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो ये पुलिस और प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी साक्ष्य संकलित करें और कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये सिद्ध करें कि वो अपराध आपने किया है। लेकिन ये सेक्शन जो 39 सीआरपीसी है, सेक्शन 39 सीआरपीसी ये महान सेक्शन है। यह कहता है कि आपने रिपोर्ट नहीं कर पाया तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हैं। मतलब पुलिस सिद्ध नहीं करेगी कि आप इनोसेंट हैं, आपको सिद्ध करना है कि आप इनोसेंट हैं, देयर वे द रीजंस thereby you could not report it to the police or to the court। तो एक गुण हमने बताया कि योर, और आप ही कहेंगे साहब ये तो बड़ा डेकोरेरियन जो है ना क्लॉज है, आप इसको पावर कह रहे हैं। आप उस क्लॉज की भाषा पे मत जाइए,
उसके लीगल कंटेंट पे मत जाइए। यह आपको एम्पावर कर रहा है। नहीं तो आप थाने में जाएंगे, वो कहेंगे भाई साहब हु आर यू टू कम एंड रिपोर्ट। आप तो विक्टिम नहीं है, जिसको कष्ट है वो आके मुझे रिपोर्ट करे। सेक्शन 39 के कारण हर किसी को वो अधिकार मिल जाता है जिसके संज्ञान में वो नॉलेज है, जो वो अपराध है। अब ये देखिए बहुत सारे लोग जो है वो पब्लिकली जो है बहुत आपत्तिजनक बातें कहते हैं, जिसमें ओवैसी जी बहुत गड़बड़ बातें करने, और बहुत सारे लोग जो है बहुत गड़बड़ सी बातें करने की उनको आदत सी पड़ गई है। और वो सब चीजें कानून में एक अपराध की श्रेणी में आती है। आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात बारीकी से सुने, क्योंकि बाद में जो है आपकी एनर्जी से इस देश में समृद्धि कैसे लाई जाएगी हम उस पर पहुंचेंगे, लेकिन हम उसको धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। पहले एक पूरा पुलिस ऑफिसर आपको बनाएंगे, फिर आपको जो एक समृद्धशाली व्यक्ति बनाएंगे, आपको साइंटिस्ट बनाएंगे, एंड आई विल मेक यू ए पावरफुल पर्सन दैट यू कैन ब्रिंग जो है ना प्रॉस्पेरिटी टू योर कंट्री, दैट टू विदाउट गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल हम हर चीज जो है ना सरकार की तरफ देखते हैं। हम आपको वो एनर्जी आज देने वाले हैं जिससे कि आपको जो है सरकार की तरफ नहीं देखना होगा, सरकार को आपकी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी वोट से बने हुए हैं। और ये आपका जो है आइडिया है कि आपकी चुनी हुई सरकार आपके जो है ना विशेष और एस्पिरेशन से वो नियम कानून और चीजें बनाए जो कि आवश्यक है। जब भी किसी आप अच्छी बात की बात करते हैं, स्पेशली भारतवर्ष में, तो लोग बात कहते हैं कि नेताओं के रहते ये अच्छी चीज कैसे हो सकती। तो नेता जो है जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप, जनता के एस्पिरेशन के अनुरूप उसको कानून में, उसको नीतियों में, उसको योजनाओं में ढाल के करना उनका काम है। और वो आपने उनको इतना बड़ा कर दिया है कि आपका वोट देने का पावर छोड़ के बाकी सब पावर आपके खत्म हो गए। मैं वो सब पावर आप में वापस आज बिठाऊंगा। इसलिए मैंने आज का टॉपिक रखा है कि कैसे युवाओं में वो एनर्जी पैदा की जा सके जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण के आधार बन सके, वो देश में समृद्धि लाने के आधार बन सके। लिहाजा जो चीजें हम धीरे धीरे ले जा रहे हैं उससे आप कई बार विचलित मत होना कि यार इसका सीधा कैसे संबंध है। वो जोड़ के मैं अभी आपको जो है उस मंजिल पे ले जाऊंगा जहां हम धीरे से आपको ले जाना चाहते हैं। तो पुनः वापस आते हैं सेक्शन 39। यदि आपके पास सेक्शन 39 नहीं होता और आप थाने में जाके कहते कि फलाने फलाने व्यक्ति ने ये अपराध घटित किया है या किसी को धमकी दी है या कहा है कि उसका गला काट दो तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। पहली बात तो ये है कि थाना प्रभारी को यदि उसके अपराध उसके दिमाग में कहीं से भी उसकी सूचना मिलती है कंप्लेंट से उस खुद को भी, तो वो सुओ मोटो अपराध पंजीयन कर सकता है। हमने अपनी व्यवस्था को इतना लचर बना दिया है कि आपको थाना प्रभारी स्व सूचना के आधार पर सुओ मोटो स्व विवेक के आधार पर अपराध पंजीयन नहीं करता है। यदि वो अपने इस अधिकार का यूज करने लगे तो जो अभी अराजकता देश में फैली हुई है वो अब स्वतः विलुप्त हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले एक कोई धर्म सभा हुई जिसमें कहा गया कि यदि हमने अपने युवाओं से कह दिया कि कानून अपने हाथ में लो तो हिंदुओं को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। किसी ने कहा कि साहब योगी और मोदी तो चले जाएंगे तब तुम कहां भागोगे मुझसे। क्या इन दोनों स्टेटमेंट में बड़ी धमकी नहीं छिपी है? क्या हम एक क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहते हैं, क्या हमारे पुलिस अधिकारी जिसका मैं डीजी रहा हूं, क्या हमारे थाना प्रभारी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके एफआईआर दर्ज करके उसे बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यदि इतना साहस हम अपने उस थाना प्रभारी में डाल दें तो आपके आसपास जितनी अराजकता फैली हुई है वो अराजकता विलुप्त होते उसे देर नहीं लगी। अब चलिए, थाना प्रभारी जी ने तो अपना काम नहीं किया, अपने पास भी एक अस्त्र है जिसको मैंने सेक्शन 39 सीआरपीसी कहा है। तो ये जो सेक्शन 39 सीआरपीसी है, मैं अपने युवाओं से पुनः आग्रह करूंगा कि ये बहुत बड़ा जो है अधिकार है, इसका यूज करें। और जब आप किसी को कोई पोस्ट डालें तो उसमें आप ये कहें
कि साहब देखिए ये मेरे नॉलेज में आई हुई है, मैं जो है ना ये फीड मुझे मिली है, ये फीड मैं आपको भेज रहा हूं और ये फीड मैं आपको जो है अपने कानूनी जिम्मेवारी जो मुझे सेक्शन 39 में दी गई है उसके तहत भेज रहा हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इसका संज्ञान लें, इस पे एफआईआर दर्ज करें। तो जो थाना प्रभारी स्वविवेक से कार्रवाई नहीं कर रहा है वो शायद कार्रवाई करने के लिए विवश हो, और यदि वो विवश नहीं होगा तो उसे विवश करने के लिए क्राइम फ्री भारत ने बहुत सारे फंडे रखे हैं जो आप बहुत सारे वीडियोस में देख पाएंगे, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर देखिए उनको, उससे आपको बहुत सारा जो है ना ज्ञान भी मिलेगा, फायदा भी मिलेगा, एंड यू कैन कंट्रीब्यूट इन दैट। कैसे कंट्रीब्यूट करोगे उसके ऊपर भी हम आएंगे। अभी सवाल है कि ये तो रिपोर्टिंग का पावर, इससे पुलिस ऑफिसर तो कोई बनता नहीं है। कानून में प्रावधान है सेक्शन 41 में, 42 में, 43 में कि एक पुलिस अधिकारी आपको उसकी सहायता करने के लिए आप जो है पूरी तरह से कानूनी रूप से बाध्य है। सेक्शन जो है 43 आपको ये पावर देता है कि यदि आपकी उपस्थिति में कोई ऑफेंस हो रहा है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आपको अधिकार है, और यह अधिकार आपको पुलिस यदि वहां है तब भी है। तो वो सेक्शन खुद कहता है कि यदि आपने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद यदि वहां पुलिस है तो यू हैंड इट ओवर टू हिम, एंड उस पुलिस वाले को कायदे से चाहिए कि चूंकि आपने उसे अरेस्ट करके दिया है, जो कि पुलिस वाले उस कार्रवाई को उस ढंग से नहीं करते हैं, उन्हें री अरेस्ट मेमो बनाना चाहिए। दुर्भाग्य से वो अरेस्ट मेमो बनाते हैं जो कि ये कानूनी रूप से गलत प्रक्रिया है, राइट। तो यदि पुलिस ऑफिसर वहां नहीं है तो यू आर सपोज टू टेक हिम टू द नियरेस्ट थाना। वो सेक्शन एक और आपको पावर देता है कि आप उन सभी व्यक्तियों को भी अरेस्ट कर सकते हो जिसको जो है पुलिस वाले ने डिक्लेयर किया है ऑफेंडर, एब्सकॉन्डर। तो इट इज क्वेश्चन जिसको आप 3 दिन तक अरेस्ट ना कर पाओ, दे शुड बी शियो मोटो ट्रीटेड, शुड बी ट्रीटेड एज एब्सकॉन्डर, और पब्लिक को स्वतः जो है ना उन्हें अरेस्ट करने का पावर मिल जाएगा। तो जो आंख मिचौली होती है कि दुनिया में जो अपराधी दिखाई देते हैं लेकिन पुलिस वालों को नहीं दिखाई देते हैं, वो जो है कानून के मंदिर में भी जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं और धड़ल्ले से जो नाम सभाओं में रहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती, पुलिस वालों को वो दिखाई नहीं देते। तो हमारे युवाओं को वो दिखाई देंगे और उन युवाओं को वो गिरफ्तारी का पावर है। तो मूल रूप से ये 3 गुण हैं, पावर ऑफ अरेस्ट, पावर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, पावर ऑफ रिपोर्टिंग, यही कुल मिला के एक पुलिस ऑफिसर को बनाता है। और चूंकि यह पावर आप सभी के पास है तो इस देश में 137 करोड़ पुलिस ऑफिसर हैं। कुछ लाख जो है वो हैं जिनको वेतन मिलता है, जो वर्दी पहनते हैं, लेकिन आप हम सभी जो है 137 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, दे आर ऑल पुलिस ऑफिसर। यदि जिस देश में 137 करोड़ पुलिस ऑफिसर हों, आपको लगता है कि वहां कोई भी अपराध जो है वो रह सकता है? तो यहां दूसरे पॉइंट पे मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूं, ऑल ऑफ यू आर द पुलिस ऑफिसर। आप जो है क्राइम फ्री भारत के जो है एक मजबूत वॉलंटियर बनिए और हम अपने देश को अपराध मुक्त बना सकते हैं थ्रू 5 सर्टेनिटीज। मैं जल्दी से उनको रिपीट कर दूंगा सो दैट बाकी चीजें आप वीडियोस में देख लेंगे एंड वीडियो में। पहली सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम विदाउट विजिटिंग थाना। और ये जो एफआईआर होगी वो आज की एफआईआर की तुलना में बहुत पावरफुल एफआईआर होगी। उसे जो है विक्टिम जाके ये नहीं कह सकता है कि साहब मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, पुलिस वाले ने लिख लिया है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी हैविंग द ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड, जो कि रियल टाइम बेसिस में विल बी लॉग्ड विद द डेट, टाइम एंड लोकेशन एंड हैश वैल्यू। तो यदि डीप फेक जैसी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है
तो भी उसके कंटेंट का मैनिपुलेशन विल नॉट बी पॉसिबल. सो इट विल बी ए काइंड ऑफ ए इनफेलिबल FIR, जिसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा थ्रू मेकिंग यूज ऑफ द AI. देन यदि उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर विल कम, सो ही विल आल्सो बिकम वन ऑफ द विटनेस. हालांकि AI विल अप्लाई द सेक्शन, लेकिन एक जानबूझ के एक लीगल वॉलंटियर को भी उसमें जो है ना डाला जा रहा है, जिससे ही विल बिकम ए एडिशनल विटनेस. यदि जो कंप्लेनेंट है वो अपनी FIR, उसके पास कोई गजेट नहीं है और वो बटन दबा के किसी नियरेस्ट वॉलंटियर को अपने पास बुलाता है, तो जो नियरेस्ट वॉलंटियर है जो उसकी FIR रिकॉर्ड करेगा, ही विल आल्सो रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट कि उसने क्या सुना, बिकॉज ही हैज बिकम देन द विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ FIR. और उसने जो है ना, ही इज आल्सो आई विटनेस टू टू मोर थिंग्स, द स्टेटस ऑफ द विक्टिम एंड सीन ऑफ क्राइम. यदि वो सीन ऑफ क्राइम पे ही यदि FIR दर्ज कर रहा है तो सीन ऑफ क्राइम देख लेगा. यदि वो सीन ऑफ क्राइम पे नहीं है तो एटलीस्ट वो विक्टिम को देख रहा है, एंड फ्रॉम हिज ऐप ही वुड बी इन पोजीशन टू रिकॉर्ड द डिटेल्स अबाउट द इंजरी मार्क्स एंड अदर थिंग्स, जो कि एडिशनल प्रूफ होंगे. ये कंटेंट जो है इसमें कंप्लेनेंट के सिग्नेचर होंगे, यदि लैंग्वेज इंटरप्रेटर है तो उसके सिग्नेचर होंगे, यदि उसमें लीगल इंटरप्रेटर है तो उसका स्टेटमेंट और उसके सिग्नेचर भी होंगे. और यदि जो है वो कंटेंट इज बीइंग रिकॉर्डेड थ्रू द वॉलंटियर, तो एक और एडिशनल विटनेस होगा. अब आप मुझे बताइए, क्या यह FIR आज की तुलना में जो FIR है उससे कई गुना ज्यादा मजबूत होगी, कानूनी रूप से ज्यादा ग्राह्य होगी? इसी प्रावधान में एक प्रावधान और रखा गया है. भारतीयों के साथ एक प्रॉब्लम और भी है, जब भी हम उन्हें कोई पावर देते हैं तो उसका दुरुपयोग करने की बात उनके जेहन में सबसे पहले आती है. जैसे RTI मिला तो RTI से जानकारी हासिल की, उसको बहुत सारे लोग जो है पर्सनल ब्लैकमेलिंग के लिए, पर्सनल लाभ के लिए यूज करते हैं. तो ऐसा ना हो, तो जिस सर्टेनिटी से आपको FIR दर्ज कराने की सुविधा दी जा रही है, उसी सर्टेनिटी से यदि आप गलत FIR दर्ज करेंगे तो द सेम सिस्टम विल प्रोसिक्यूट यू फॉर लॉजिंग फॉल्स एंड एग्जैजरेटेड FIR. इसकी सेकंड सर्टेनिटी है कि बैकएंड इंजन जो है वो एविडेंस कलेक्ट करने में मदद करेगा. बैकएंड इंजन जो है वॉलंटियर्स के माध्यम से विटनेसेस के स्टेटमेंट वगैरह लेने में भी मदद करेगा. बैकएंड इंजन जो है वो 91 के तहत जो भी जानकारी, जो भी एविडेंस जहां है उसको फैच करने में मदद करेगा. वो CCTV का जो कंटेंट है उसको फैच करने में मदद करेगा और एक इन्वेस्टिगेशन लीड देगा, जिससे पुलिस, एक साधारण सा पुलिस ऑफिसर वो साक्ष्य इकट्ठे कर पाएगा जो इकट्ठे करना आज उसकी सोचने की शक्ति से भी बाहर है. करना तो छोड़ दीजिए, जिस चीज को वो सोच नहीं सकता है, एक बैकएंड इंजन इस कार्रवाई को 7 दिन में पूरा करेगा. तो एक मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर विद द हेल्प ऑफ द यूथ एंड कम्युनिटी, वो जो है एक ऐसा इनफेलिबल अकाट साक्ष्यों के साथ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्रिएट कर पाएगा, वो भी 7 दिन के अंदर, और चालान 7 दिन के अंदर जो है वो कोर्ट में होगा. कोर्ट अभी 90 दिन में का समय देता है, तो वो 90 दिन जो है ना, कोई बहुत ही विषम वाले केस है तो बात अलग है, बट नॉर्मली द इन्वेस्टिगेशन मस्ट कंप्लीट विद इन 7 days विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ. और जो इन्वेस्टिगेशन लीड जो है वो पुलिस को दी जा रही है, वही इन्वेस्टिगेशन लीड पब्लिक को भी दी जाएगी. और इससे एक एडवांटेज ये मिलेगा, आप लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि जो पुलिस जिस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है, वो स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन बट नॉट फॉर द करोबरेशन. मतलब पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया जो बयान है या स्टेटमेंट है, वो अपराधी के हित में तो यूज हो जाएगा, लेकिन आपके प्रकरण के हित में यूज नहीं होगा. आपको शायद ये भी मालूम होगा कि सेक्शन 25 के तहत कॉन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, और सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट के तहत थोड़ा सा पोर्शन जो कि लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट, वही केवल एडमिसिबल है. तो जब हम
अपने वॉलंटियर्स को यूज करेंगे तो जो ये लीगल हैंडीकैप है वो भी खत्म हो जाएगी। तीसरी इसकी सर्टेनिटी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 15 दिन में न्याय संभव होगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के का भी प्रकरण होता है, उनकी हत्या भी हो जाती है तो हम 2500 साल लगा देते हैं। यह सिस्टम बिना कोर्ट जाए, तो पहले उसमें सर्टेनिटी में आपने कहा कि आपकी एफआईआर बिना थाने जाए दूर होगी, रजिस्टर होगी, और अब आप तीसरी सर्टेनिटी में कह रहे हैं कि 15 दिन में न्याय होगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम, जिसको आप वर्चुअल कोर्ट या वर्चुअल ट्रायल सिस्टम भी कह सकते हैं, उसके माध्यम से होगा, जो आज की तुलना में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और इट विल बी फुल्ली इन कंप्लायंट विद द लीगल प्रोविजन ऑफ द डे। मतलब उसके लिए कोई नई चीजों की जरूरत नहीं है, वो होगा और हम 15 दिन में न्याय कर पाएंगे। और चौथा उसका प्रोविजन ये है, क्योंकि इसके बैक एंड में एक डिजिटल इंजन क्रिएट किया गया है जिसको हमने नाम दिया है डिजिटल चित्रगुप्त। बच्चों, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भगवान जो है गॉड को हम क्या कहते हैं कि ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी बेनेवोलेंट। मतलब वो बहुत दयावालु है, वो हर जगह हर कण में विराजित हैं, उनको हर चीज का ज्ञान है और वो सर्व शक्तिशाली। तो ये सब एट्रीब्यूट्स जो है भगवान ने किसके माध्यम से लिए, तो आपने एक चित्रगुप्त का नाम सुना होगा। चित्रगुप्त कीप्स अकाउंट ऑफ एवरीबॉडी। उनके पास जो है ना वो इतना पावरफुल सिस्टम है कि आपकी वीडियो क्लिप्स उनके पास रहती हैं, और जब हमारी मौत होती है तो हमारा ट्रायल होता है, आपको आपकी वीडियो क्लिप्स दिखाई जाती हैं और जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि आपको स्वर्ग जाना है कि नरक में जाना है, राइट। तो क्राइम फ्री भारत ने उसी लाइन पर एक डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट किया है। लेकिन आप ये देखिए, क्या वो चित्रगुप्त आपका वीडियो आपकी पत्नी को दिखाता है, क्या आपके किसी रिश्तेदार को दिखाता है, क्या किसी थर्ड पार्टी को दिखाता है? इसका मतलब है भगवान का चित्रगुप्त आपका राइट टू प्राइवेसी की बड़ी इज्जत करता है। तो हमारा डिजिटल चित्रगुप्त भी जो है आपकी राइट टू प्राइवेसी का जो है वो ग्रांट कर रहा है, और इसको ग्राउंड पे उतारने के लिए मैंने एक ड्राफ्ट कानून जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 30 सितंबर 2020 को भेजा है, और उसका हमने नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हम जो बात कहेंगे उसे संविधान और कानून के तहत बात हमको होना चाहिए, और उसमें हमारे जो चेयरमैन महोदय वो भी आपके राइट टू प्राइवेसी को जो है ना वायलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि वो किसी से भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो बैकएंड इंजन जो है ना उसकी रिपोर्ट करेगा, और ये ऑफेंस जो है ना कॉग्निजेबल होगा, नॉन वेलेबल होगा, और इसमें जो है मिनिमम 7 साल की सजा होगी। और यदि आप एक से ज्यादा वायलेशन करेंगे तो जो क्राइम है दैट हैज टू बी प्रोसिक्यूटेड, और जो पनिशमेंट है दैट विल नॉट बी कॉन्करेंट, दैट विल बी कॉन्सिक्यूटिव। तो मतलब आपने यदि 5 ऑफेंस किए तो 5 साथ नहीं चलेंगे। इसका मतलब है 7 × 5 35 ईयर के लिए आप चेयरमैन महोदय लॉक हो गए जेल में। लिहाजा इवन चेयरमैन ऑफ दैट अथॉरिटी जो कि बैकवर्ड जिसके अधीन जो डिजिटल चित्रगुप्त है, वो भी ये हिम्मत नहीं कर सकता है कि आपके राइट टू प्राइवेसी को जो है ना वायलेट करे। एट द सेम टाइम इफ योर कंडक्ट इज फॉलिंग विद इन द 4 वॉल ऑफ द क्राइम, विद सर्टेनिटी वो चित्रगुप्त जो है ना कोर्ट में भी भेज देगा, पुलिस को भी भेज देगा। सो यू आर एंजॉयिंग राइट टू प्राइवेसी when it is within the 4 walls of the legal conduct. The moment you are flouting, the moment you are crossing the legal boundary and your conduct could be bracketed as a crime, that same Chitragupt will send it to the police, and same Chitragupt will send it to the court with digital certificate of the admissibility, integrity and chain of custody. कि हम अकेला एविडेंस नहीं भेज रहे हैं, ये एविडेंस इनफॉलिबल है। यही कारण है कि हम जो है हमारा ट्रायल बहुत इफिशिएंट होगा, उसमें बहुत ज्यादा एविडेंस होंगे, और 15 दिन हम राउंड द क्लॉक जो है डिजिटल उसका ट्रायल चलेगा, और हम 15 दिन में विद सर्टेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि भारत में बिना सर्टेनिटी के आप कोई बात करो तो वो एक चुनावी जो है एक बाधा सा हो जाता है। बाधा नहीं करना है, आपको करके दिखाना है। सो देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन विदिन 15 days। और फोर्थ में जो चूंकि डिजिटल चित्रगुप्त है, he is having 360-degree details about the criminals, so he would be in position to anticipate कि ये जो व्यक्ति है based on the various things he is going to commit crime। उसे ये भी मालूम होगा कि ये व्यक्ति कैसे हंसता है, क्या पहने हुए है, जब घर से निकला तो क्या पहने हुए था, रास्ते में कुछ बदला तो क्या पहन लिया उसने, पहले निकला तो किस गाड़ी में था, रास्ते में गाड़ी भी बदल दी तो कौन सी गाड़ी में पहुंचा। ये सब एविडेंस उसके पास होंगे and then it will be in position to intervene and through smart intervention the person would be arrested। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि साहब आप क्राइम फ्री भारत के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, क्या इन 4 चीजों से, 4 सर्टेनिटी से क्या ये देश अपराध मुक्त हो जाएगा? तो मैं कहूंगा नहीं। और उसका कारण ये है कि यदि हमारे पेट भूखा है, यदि हम समर्थ नहीं है, यदि हम संपन्न नहीं है, यदि हम गरीब हैं और हमको ये लगता है कि जेल के बाहर ज्यादा खराब जिंदगी है, जेल जाना इज ए बेटर ऑप्शन, वहां एक ऊपर वॉल रहेगी, वहां पे खेलने की व्यवस्था भी है, सब कुछ अच्छा है, यदि बेल जो आपका जेल है यदि वो बाहर की परिस्थितियों से बेहतर है, एंड इफ समबडी कमिट क्राइम टू गो टू जेल, आप ऐसे अपराध को कभी नहीं रोक पाएंगे। तो व्हाट इज दैट नीड टू बी डन? सो दैट इज सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। जब आप हर अपराधी का हर चीज ही जान रहे हो तो उसको अपराधी क्यों बनाए रहने देना चाहते हैं? सो देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन बाय रीचिंग आउट टू हिम एंड रिहैबिलिटेटिंग। आप कहेंगे साहब इससे तो क्राइम फ्री भारत हो जाएगा, तो देश समृद्ध कैसे होगा? आपने तो अपने टाइटल में कहा है कि हम युवाओं को वो ऊर्जा देंगे जिससे देश समृद्ध होगा। तो इसमें जो है 5 रेवेन्यू स्ट्रीम है। जो समन्स वारंट, इसमें पुलिस की डीबर्डनिंग है, जो पुलिस के समन्स वारंट वगैरह तामील होंगे वो पुलिस नहीं करेगी, दैट विल बी डन बाय द सीएफबी वॉलंटियर्स एंड ही विल बी गेटिंग ए रेवेन्यू स्ट्रीम। वो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों इंफॉर्मेशन फीड करेंगी और वो दोनों इंफॉर्मेशन भी जो है दे विल बी हैविंग द रेवेन्यू स्ट्रीम। जो आप एविडेंस कैप्चर करेंगे स्पेशली इन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, द 50% रेवेन्यू विल गो टू द पर्सन। अब आप अंदाज लगाइए कि इट विल बी क्रिएटिंग सच ए माइंड बॉगलिंग रेवेन्यू। देखिए छोटा सा हम आपको उदाहरण देते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट को ही ले लें अपन, जिसमें आपका हेलमेट ना लगाना, नंबर प्लेट ठीक नहीं होना, ब्ला ब्ला, ऐसे ऑफेंसेस हैं और उसमें 2000 से लेके 25,000 तक का फाइन का प्रावधान है। और उसमें यदि वो क्राइम कोई लॉ इन्फोर्सर करता है, जैसे पुलिस वाला करता है, तो उसी कानून में प्रावधान किया गया है कि डबल द पेनल्टी होगी। इसका मतलब एक पुलिस ऑफिसर की जो पेनल्टी होगी वो 4,000 से लेके 50,000 होगी। अब अपन सबसे छोटा ऑफेंस पकड़ते हैं 2000, जैसे जिसमें हेलमेट ना लगाना, नंबर प्लेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी आप देखते हैं कि हमारी जो मशीनरी है वो उसका एनफोर्समेंट नहीं कर पा रही है। अब हम इसको है 3 चीजों से कैप्चर कर सकते हैं। एक ऐप के माध्यम से, जो कि युवा आप जैसे लोग, क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स, कम्युनिटी एट लार्ज। दूसरा जो है IoT डिवाइस, जो कि जगह जगह पे फिक्स होंगे। तीसरा CCTV डिवाइसेस। और ये डिवाइसेस जो है, आई डोंट वांट टू बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, आई वांट इट टू बी ओन्ड बाय द पब्लिक, क्योंकि हम पब्लिक को आधा पैसा देना चाहते हैं और जो रेवेन्यू पब्लिक के पास आएगी वो 1 महीने से 3 महीने के अंदर ही जो है ना उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट उसके पास मिल जाएगी। देयर आफ्टर इट विल बिकम ए EMI जनरेशन काइंड ऑफ द सिचुएशन। अब आप ये मानिए कि चाहे आपने किसी भी माध्यम से उसे एविडेंस को कैप्चर किया है, यदि भारत का हर नागरिक केवल एक बटन दबाता है तो 1000 सरकार को जाएंगे और 1000 जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा। तो 137 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1000 का मतलब है 1,37,000 करोड़ रुपए पैदा होंगे केवल एक बटन दबाने से। देखिए कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से 9 या 10 लाख रुपए जो है पूरे साल भर में जो है इकट्ठा करता है। तो ये 10 लाख रुपए यदि पब्लिक ने 10 बटन दबा दिए तो एक दिन में पैदा हो जाए।
it means we would be in position to create so much of the revenue. क्राइम फ्री भारत बोनस में मिल गया है और धीरे धीरे जो है हम कैप्चरिंग ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द वायलेशन उन सबको कंपाउंडेबल बनाएंगे और इट विल बी जनरेटिंग सो मच ऑफ द रेवेन्यू कि क्राइम फ्री भारत के अकेले रेवेन्यू से हम देश को टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो इसका दूसरा जो मॉडल है वो कह रहा है टैक्स फ्री भारत। इसमें उसका जो पहला काम रहेगा कि देयर विल बी नो पेपर करेंसी। अब चूंकि पेपर करेंसी की बात ऐसे दिमाग में जाएंगे तो आप कहेंगे साहब साइबर क्राइम इतना होता है, घपले इतने होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि साइबर क्राइम हमारे निकम्मेपन के कारण से हो रहा है, अदरवाइज साइबर क्राइम होना एकदम इम्पॉसिबल है। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, क्या आपको मालूम है मैं किसी भी साइबर क्राइम को एक मछुआरे के रूप में देखता हूं। एक मछुआरा अपना जाल फेंकता है और उसमें कुछ मछलियां पकड़ में आती हैं। क्या एक साइबर क्रिमिनल ऐसे ही नहीं करता है? वो सैकड़ों लोगों को फोन लगाता है, सैकड़ों लोगों को एसएमएस भेजता है, सैकड़ों लोगों को ईमेल भेजता है, सैकड़ों लोगों को कोई लिंक भेजता है बुद्धू बनाने के लिए। कानून की भाषा में ये सब क्राइम है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जब आपको लॉस हो जाए तभी है। They are attempt of a crime and attempt of a crime is also a crime। यदि और हम और आप सभी को सैकड़ों की संख्या में एसएमएस मिल रहे हैं, बेटे आप अंदाज करो यदि हम सब एसएमएस पे और सब ईमेल पे और सब जो है ना टेलीफोनिक कॉल और लिंक पे यदि हम कॉग्निजेंस ले लेंगे तो जो क्रिमिनल है एक दिन में उसके खिलाफ हजारों केस रजिस्टर हो जाएंगे, राइट। उसकी आइडेंटिटी कैन इजीली बी कैप्चर्ड, उसका एविडेंस जो है ना इनफेलिबल एविडेंस कैन बी कैप्चर्ड विद नो प्रॉब्लम। तो आपको अपराधी भी मालूम है, उसके एविडेंस भी मालूम है, देन उसका पनिशमेंट विल आल्सो बी सर्टेनिटी। अब यदि हम क्राइम फ्री मॉडल में उसको फिक्स कर देते हैं कि ऑटोमेटेड आपका जो है ना क्राइम का कॉग्निजेंस हो गया, 7 दिन में जो है ना वो अरेस्ट होकर जेल पहुंच गया और 15 दिन में जो है उसको आपने सजा दे दी, तो आप बताइए कोई भी क्रिमिनल क्या साइबर क्राइम करेगा? तो हमें सबसे पहले वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और वो जो छोटे बहुत हिकअप्स हैं वो भी इमेजिनरी है। हम कह सकते हैं कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स विदाउट आइडेंटिटी विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू एंटर इनटू द साइबर स्पेस। हम उसके बैंक अकाउंट तक की भी जानकारी के लिए लॉ बना सकते हैं। आपको कई बार प्रॉब्लम आती है कि सर्वर इज लोकेटेड इन सम अदर कंट्री, इट इज ए स्मॉल वर्क वी कैन हैव कि जो व्यक्ति का सर्विस, जो कंपनी का सर्वर हमारे यहां नहीं होगा, ही कैन नॉट इंटरेक्ट विद अस। तो चूंकि इंडिया इज ए बिग मार्केट, आज के दिन में बिना इंडिया के कोई भी जो है ना कंपनी अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकती है, तो वो उसको जो है ना हमारे यहाँ अपने सर्वर लगाना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें बहुत डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, वी कैन बी वेरी ऑफेंसिव बिकॉज वी आर now leader in the IT field, number 1. Number 2, we are the biggest market also. यदि हम जो है ना नहीं करेंगे तो इनके जो है ना YouTube से लेके Facebook से लेके सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो they cannot afford to ignore our rightful request to them। तो आइडेंटिटी हमने कैप्चर कर ली, पैटर्न हमने उनका जो है ना एविडेंस हमने कैप्चर कर लिया, और यदि हमने उसको ये भी साथ में नियम बना दिया कि हम इसको कॉन्करेंटली नहीं चलने देंगे, सजाएं जो है कंसेक्यूटिवली चलेंगी, तो यदि 1000 केस में आपने बुक कर दिया और यदि 2 साल की भी सजा है तो वो 2000 साल के लिए लीगली जो है वो होगा, वो इसका मतलब है जेल में सड़ जाएगा। जो भी साइबर क्राइम कर रहा है वो थोड़ा सा स्मार्ट व्यक्ति है। वो आज साइबर क्राइम सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इससे धन आ जाएगा जिसे हम अपने हित के लिए यूज कर लेंगे, अपने फैमिली के लिए, घूमने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। जब उसे लगेगा कि हम सर्टेनिटी से जेल में सड़ जाएंगे, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वो साइबर क्राइम करेगा? नहीं करेगा। तो अब साइबर क्राइम का खतरा निकालना सबसे पहले बहुत जरूरी था, इसलिए हमने साइबर क्राइम की बात की। अब हमें दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? वी विल मेक दिस कंट्री करेंसी फ्री। तो हमारा ये हवाला जितने भी नौटंकी नाटक हैं, इलीगल मनी आके हमारे यहाँ पे जो ड्रामा नाटक हो रहा है जिसमें टेररिस्ट को फाइनेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब अपने आप खत्म हो जाएगा, बिकॉज ऑल मनी फ्लो विल बी हैविंग स्ट्रेट, राइट।
तो हम एक चीज से बहुत सारे निशान कर लेंगे। नाउ इनकम और नो अदर टैक्स विल बी देयर, देयर विल बी ओनली ट्रांजैक्शन चार्जेस या ट्रांजैक्शन टैक्स भी कह दें तो 2% का ट्रांजैक्शन चार्ज यदि हम कॉस्ट रख देंगे तो आज जितना हम रेवेन्यू पैदा कर रहे हैं इसका कम से कम 100 गुना रेवेन्यू हमारे पास आएगा, और विद द जीरो टैक्स। हमें टैक्स इन्फोर्समेंट के लिए कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट लगाना पड़ते हैं, हमारी वो कॉस्ट भी बच जाएगी, राइट। तो टैक्स फ्री भारत इज संभव। अब आपकी दूसरी प्रॉब्लम है नेतागिरी वाली। तो जब भी कोई आप अच्छी बात करते हैं तो बच्चों में आपसे पूछना चाहता हूं, लोगों की दलील क्या होती है कि साहब ये भारतवर्ष में हमारे नेताओं के कारण होना संभव नहीं। रहती है कि नहीं रहती है? हाँ या नहीं? कोई भी अच्छा काम भारत में क्यों नहीं हो पाता है? लोगों का मानना है कि यहाँ के नेता ये नहीं होने देंगे। क्या आप हमारी इस बात से सहमत है? जरा अपना माइक ऑन करके बताइए। यस सर। यू एग्री? एनी अदर ओपिनियन? जरा जोर से बोलिए। यस सर, होता है सब। ओके। तो जिन व्यक्तियों को आप नेता कहते हैं ये कौन लोग हैं? इन्हें आपने चुना है। ये एक अनफॉर्चुनेट स्थिति है कि आज जो 2019 में आपका पार्लियामेंट बना है इसमें 42% आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड है। ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि इनमें से 29% लोगों के खिलाफ जघन्य अपराध है। हत्या, अटेम्प्ट टू हत्या मतलब रेप, मर्डर, किडनैपिंग, डकैती। जिस देश में आपको चपरासी बनने के लिए भी साक्षरित्र भी होना चाहिए, साक्षर भी होना चाहिए। बच्चों आप मुझे बताइए कि आपके कानून के निर्माताओं को क्या अपराधी होना चाहिए? नो जरा जोर से बोलिए। नो सर। नहीं होना चाहिए। अभी आपको ये बात क्या मालूम है कि एक PIL लगी थी जिसमें ये सब बात को हवाला देते हुए कहा गया कि साहब ये जो हमारे राजनेता, कानून के निर्माता जो अपराधी बन रहे हैं, अपराधी लोग जो है वो टिकट मिल रहा है और वो चुने जा रहे हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, यह जिम्मेवारी पार्लियामेंट की है जो कानून बनाती है। मैं भी आपकी तरफ से अनुशंसा करता हूं पार्लियामेंट से कि वो ऐसा कानून बनाए। चूंकि एक अपराधी अपने साथ बाहुबल लाता है, पैसा लाता है, अपने साथ डर लाता है, उसके जीतने की संभावना 3 गुना ज्यादा होती है, और यदि उसमें जाति और धर्म का तड़का लगा हो तो उसकी जीतने की संभावना 5 गुना ज्यादा रहती है। ऐसी स्थिति में हर पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को ही ले रही है। मुझे लगता है कि एक समय आ गया है कि युवाओं को एक मूवमेंट बनाना चाहिए, सभी को बनाना चाहिए। लेकिन हम युवाओं को इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि आज विवेकानंद जयंती है, चूंकि हम विवेकानंद मंच पे बात कर रहे हैं तो और हम युवाओं को एड्रेस कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार युवाओं को जोड़ रहे हैं। इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए, सभी को करना है, लेकिन युवाओं को शक्ति के साथ करना है। और ये हमारे वोटों से चुने हुए नेता हैं, इन्हें हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप, इन्हें जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करना चाहिए। ये अपने आप में मठाधीश नहीं बन सकते हैं, ये अपने आप में दरबारी नहीं बन सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा रुक के फिर से क्वेश्चन पूछता हूं। मैं जरा संवाद करने में ज्यादा रुचि रखता हूं। आप मुझे बताइए, आपके देश में प्रजातंत्र है या पार्टी तंत्र? डेमोक्रेटिकली तो प्रजातंत्र है, पर लगता है तो है वो पार्टी तंत्र ही लगता है। ये बिल्कुल प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र का केवल एक छोटा सा उसमें है कि आप वोट देते हैं और आप किसी को चुनते हैं, राइट। आपको ये पार्टियां मजबूर कर रही हैं कि एक अपराधी को चुने, क्योंकि वो अपराधियों को वोट खड़ा कर रही है। पहले आपका जो है पॉइंट हो गया कि आपके उन्होंने ऑप्शन लिमिट कर दिए, बिकॉज पार्टी दे आर जो है ना फ्लोटिंग कैंडिडेट्स। तो उन्होंने अपराधी को टिकट देके, जिनकी संख्या बढ़ के जो ना 42% पे पहुंच गई है। पहले अपराधी बाहर से खड़ा होके सपोर्ट करता था पॉलिटिकल लोगों को, अब उन्होंने कहा कि अरे साहब जो हमारे कारण ही जीते हैं तो हम ही क्यों नेता ना बन जाए।
तो 42% क्रिमिनल्स जो है आपके पार्लियामेंट में घुस गए, राइट। तो पहला जो है उन्होंने आपका किसको वोट देना ये ऑप्शन ही खत्म कर दिया, राइट, नंबर 1। अब दूसरी बात है कि आपको वोट देने के लिए उन्होंने कैसे फोर्स किया, फ्रीबी बांट के, दारू बांट के, पैसे बांट के, साड़ी बांट के, धर्म और जाति के आधार पर बांट के। अब एक मिनट के लिए अपन इस बात को भूल जाते हैं, अपने मानते हैं कि जिस किसी को जिस कारण से भी आपने वोट दिया वो आपका चुना हुआ प्रतिनिधि है। ये बात सही है कि नहीं? चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे उसने हमको मूर्ख बनाया हो, चाहे जातिवाद से दिग्भ्रमित किया हो, चाहे फ्रीबी से दिग्भ्रमित किया हो, चाहे पैसे से दिग्भ्रमित किया हो, लेकिन ये बात में तो कोई भ्रम नहीं है कि वो मेरे वोट से चुना है, तो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब आपका चुना हुआ प्रतिनिधि क्या आपकी बात पार्लियामेंट में रखने की स्थिति में है? ना तो वो अपने दिल की बात कह सकता है और ना ही वो आपके दिल की बात कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि हमने इसे पार्टी तंत्र में कन्वर्ट कर दिया है। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो व्हिप जारी करती है कि उसके जो लोग हैं वो ये बात कहें, इस पे वोट दें, और यदि वो व्यक्ति उस व्हिप को नहीं मानता है तो इन्होंने बैकएंड पे ऐसे नियम बना दिए हैं कि उसकी प्राइमरी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी, राइट। अब चलो कोई बात नहीं, हमारा प्रतिनिधि है पार्लियामेंट में, हमारी बात नहीं कह पा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपका प्रतिनिधि क्या पार्लियामेंट के बाहर अपनी बात कह पा रहा है? बाहर क्या प्रॉब्लम है? बाहर उसकी प्रॉब्लम है पार्टी डिसिप्लिन की। उसको कहेंगे कि आपने पार्टी के डिसिप्लिन का वायलेशन किया और मैं आपको जो है ना पार्टी की प्राथमिक मेंबरशिप से भी आपको बर्खास्त करता हूं। तो उसको लगता है कि चाहे मुझे मंत्री पद मिला हो, चाहे किसी कारपोरेशन का अध्यक्ष मिला हो, चाहे कुछ जो कुछ भी मिला है, वो क्यों जाए, तो भागते भूत की लंगोटी ही सही। तो ना वो पार्लियामेंट के अंदर आपकी बात कह पा रहा है, ना पार्लियामेंट के बाहर आपकी बात कह पा रहा है, तो फिर प्रजातंत्र कहां हुआ? प्रजातंत्र में केवल आपका इतना ही रोल है कि गुलामों की तरह आप एक वोटिंग मशीन बन गए, जो उनके द्वारा चुने हुए व्यक्तियों को आप वोट देने के लिए बाधित हैं। और इन्होंने नोटा जो है ना इलेक्शन कमीशन के उसमें लाया, लेकिन नोटा को एक कैंडिडेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया। यदि कैंडिडेट नोटा यदि जीते तो जितने लोग भी उसमें कॉन्टेस्ट किए वो इसका मतलब है बहुत ही ठीक व्यक्ति नहीं थे, और उनको यदि हम कहें कि आप तपस्या करिए, आपको 15 साल जो है ना इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की पात्रता नहीं होगी, तो वो सही मायने में नोटा एक कैंडिडेट होगा। एंड जो नॉन सीरियस लोग हैं या जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, नियम कानून ना मानने के बावजूद भी इस डर से कि वो 15 साल के लिए बाहर हो जाएंगे, प्रोबेबली उन्हें खड़े होने की हिम्मत खत्म होने लगी। तो हम इस तरीके से टैक्स फ्री भारत ला सकते हैं। क्राइम फ्री भारत का एक और इनिशिएटिव है जो कह रहा है कि हम जो है एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव कर सकते हैं। आज जो है ना पॉलिटिकल पार्टी का ये कहना है, अरे साहब चुनाव इतने खर्चीले होते हैं तो फिर जो है पैसा तो हमें लेना पड़ता है, तो वो पैसा जो है ना कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से लेते हैं, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट उनको जो है ना ब्लैकमेल करके अपने हित के जो है ना कानून बनाते हैं, तो जनता का हित गायब हो जाता है। जो लॉबीज हैं, जो रिप्रेजेंट वो हैं, वो डिक्टेट करते हैं कि भारत का भविष्य कैसा हो। तो पहले अंग्रेज तय करते थे, अब ये लॉबीज तय करती हैं, अब जो है ना ये क्रिमिनल तय करते हैं। लिहाजा एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन, खर्च विहीन भारत, जिसका पहला जो है शर्त है कि चुनाव के दौरान खर्च करना एक संज्ञेय अपराध हो। हमारा कहना है, और 1-to-1 कैनवासिंग विल बी प्रोहिबिटेड। आप एक जन नेता 1-to-1 कैनवासिंग क्यों करना चाहिए? क्या हम कहेंगे कि प्रदीप कुमार जी हमारे जाति के हैं, प्रदीप कुमार जी हमारे धर्म के हैं, प्रदीप कुमार जी हमारे क्षेत्र के हैं? क्या कहना चाहता है 1-to-1? भाई यू वांट टू टॉक 1-to-1। उसे जो कुछ भी कहना है डिजिटल कहे, और बैकएंड में जो है जो इलेक्शन कमीशन है ये उसके ऊपर जिम्मेवारी होगी कि सभी को बराबर चांस दिए जाएंगे और वो सबको बराबर जो है
फ्लोट किया जाएगा। यदि कोई इतना वो है कि जो अपना क्या कहना चाहता है वो भी वीडियो नहीं बना पा रहा है, तो दिस फैसिलिटेशन विल कम फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन विदाउट एनी कॉस्ट। और किसी भी कैंडिडेट को कोई भी एक्सपेंडिचर कमिट करना वुड बी जो है ए क्राइम। आप 1-to-1 कैनवासिंग विल बी ए क्राइम। तो आप जो भी कहना चाहते हैं आप ऑन रिकॉर्ड कहिए। देन जो है बैकएंड इंजन आपकी सभी क्लिपिंग को कलेक्ट करेगा और 7 दिन पहले आपकी एक ग्रिलिंग सेशन होगा, जिसमें आपने जो जो कहा उसको कंपाइल करके पहले पब्लिक को दिखाया जाएगा। इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, पब्लिक एट लार्ज फिर अपने उन लोगों से क्वेश्चन करेंगे कि आप ये काम कैसे करेंगे, वो काम कैसे करेंगे। तो केवल जो है अच्छे समझदार व्यक्ति ही जो है इस उन चीजों का जवाब दे पाएंगे, उन चीजों को कर पाएंगे। तो आपको जो है कानून के निर्माता ऐसे लोग मिल पाएंगे जिनका भेजा चलता है, जो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, जो कि अच्छे कानून बनाने में मदद कर सकते हैं, जो कि अच्छा भारत पैदा करने में मदद कर सकते हैं। यदि आप पहले हमारे प्रतिनिधि रहे हैं तो उस दौरान आपने क्या क्या किया, आज सभी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं, तो वो एक्सट्रैक्ट भी दिखाया जाएगा। आपने यदि सेशन अटेंड नहीं किए तो वो एक्सट्रैक्ट भी दिखाया जाएगा। यदि आप अपराधी रहे हैं तो आपका वो हिस्सा भी दिखाया जाएगा। फिर जो है देयर विल बी वोटिंग, तो वोटिंग विल बी थ्रू ऐप। अब आप लोग जो है इस तरीके की चीजों को बनाने के लिए आगे आइए। तो उस वोटिंग में कई फंडामेंटल चीजें रहेंगी। पहली रहेगी योर आइडेंटिटी विद द n नंबर ऑफ सोर्सेस, राइट। वो आधार कार्ड से वेरिफिकेशन भी करेगा, आपके बैंक अकाउंट से भी वेरिफिकेशन करेगा, आपके जो ना मोबाइल से भी आपका वेरिफिकेशन करेगा। तो आपकी कोई फर्जी वोटिंग संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देयर विल बी इन्फॉर्म्ड वोटिंग, राइट। इन्फॉर्म्ड वोटिंग कैसे होगी कि जितने लोग भी खड़े हुए हैं, जब तक उनके ये वीडियो, ग्रिलिंग सेशन और ये सब जो चीज अभी अपन ने बताई है, जब तक उसे आप देख नहीं लेंगे, वो कहेगा कि अभी आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, लिहाजा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। जब अजय अजूमकर ये 5 कैंडिडेट हैं, उन 5 कैंडिडेट्स के वीडियोस, ग्रिलिंग सेशन सब कुछ जो है ना आपने देख लिया, then it will give you a certificate, Mr. So and so, पहले your identity is ascertained, you are a voter, with this identity you are eligible to vote, right? Second वो आपको कहेगा, आपको सब दिखा दिया, so then second वो कहेगा now you are a informed voter. Without informed voter you cannot vote, right? Now you have become informed voter. Then आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, आपकी वोटिंग कंप्लीट हो गई। सो इट विल बी वेरी इन्फॉर्म्ड वोटिंग। हम उसमें वो भी नोटा वाला और वो ढेर सारे फंडे भी ला सकते हैं। तो इट विल बी क्वालिटेटिवली वेरी गुड जो है, एंड वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट वोटिंग विद द 0 एक्सपेंडिचर। होगा कि नहीं होगा? अब आप ये बताइए, मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाता हूं। अज्यूम करिए कि आपने वोट नहीं दिया, तो द सिस्टम विल कैप्चर यू हैव नॉट वोटेड, और वो जाके आपकी सब आइडेंटिटी में घुस जाएगा, राइट। जब तक आप अगले चुनाव में वोट नहीं दे देंगे, तब तक वो जो है, यदि आप बस से ट्रेवल करेंगे तो 10% ज्यादा किराया लगेगा, यदि आप ट्रेन से ट्रेवल करेंगे तो 10% ज्यादा किराया लगेगा, यदि आप जो है ना एयर से ट्रेवल करेंगे तो 10% ज्यादा किराया लगेगा, यदि आप होटल में ठहरेंगे तो 10% ज्यादा जो है ना आपसे जो है ना ठहरने का चार्ज लगेगा, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा उससे 10% ज्यादा फीस लगेगी। आप बताइए, क्या 100% लोग वोटिंग नहीं करेंगे? एक बार गलती कर देंगे, अगले चुनाव में गलती नहीं होगी। यस और नो? मैं ठीक कह रहा हूं ना? यस सर। आप में से कोई किसी को लगता है कि इफ आई एम नॉट गोइंग अलोंग, मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जिसमें मैं अपनी पोजीशन और उसका रौब झाड़ के और आपको जबरदस्ती हाँ कहलवा रहा हूं, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। यदि कहीं पे भी आपको लगता है कि मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, जो कि इलॉजिकल है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी में कोई आपको समस्या दिख रही है, तो प्लीज आस्क क्वेश्चन। आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज डूएबल। तो देखिए, हमने एक छोटी सी चीज में जो कितने फायदे ले लिए। नंबर 1, हमने आइडेंटिटी और फर्जी वोटिंग रोक दी। हमें ना कोई पोलिंग बूथ बनाना, ना कुछ बनाना है। हमने इन्फॉर्म्ड वोटिंग कर दी।
हमने कैंडिडेट की जो है ना स्क्रीनिंग के लिए, चूंकि वो बोलेगा, अपनी बात को डिफेंड करेगा, तो जब तक उसकी मेंटल फैकल्टी ठीक ठाक नहीं होगी, ही वुड नॉट बी इन पोजीशन टू क्रिएट ए गुड इंप्रेशन, राइट। तो अच्छे कैंडिडेट ही चुने जाएंगे। एंड देन जो है आपने सर्टेनिटी ऑफ वोटिंग कर दी, तो जो कम लोगों के वोट के कारण जो लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, हम में से वो लोग जनरली वोटिंग के लिए भी नहीं जाते हैं, जो हमारा वेरी फंडामेंटल ड्यूटी है। हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि हम उस फंडामेंटल ड्यूटी का भी पूरी तरह से निर्वहन नहीं करते हैं। फिर 100% पॉपुलेशन इस डर से कि वो जो यदि उसने वोटिंग नहीं किया और उसकी आइडेंटिटी सब जगह चली गई और उसको हर चीज के लिए 10% ज्यादा पैसा लगेगा, तो 100% वोटिंग होगी कि नहीं होगी? हाँ या नहीं? प्रदीप जी, आपका क्या कहना है? 100% वोटिंग होगी कि नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी। आप ये बताइए, आपने देखिए खर्च विहीन चुनाव कर दिया, आपने जो 1-to-1 कैनवेसिंग और फालतू की चीजें हैं वो खत्म कर दी, आपने पुलिस के ऊपर और बाकी लोगों को जो व्यवस्थाओं में फालतू में लगे रहते हैं, वो महीने में कितनी फोर्स यहाँ से वहां जाती है, कितने फोर्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है आपको, वो सबसे आप बच गए। और आपका 100% पॉपुलेशन जो है ना वोट करेगी और इन्फॉर्म वोटिंग करेगी, तो आपके जनप्रतिनिधि आज की तुलना में बेहतर जनप्रतिनिधि होंगे। डू यू एग्री विद दिस? अब जो है क्राइम फ्री भारत का एक है एग्रो मॉडल, जो कह रहा है कि हम किसानों को रातों रात जो है ना 5 गुना आमदनी देंगे, और आगे जाके तो शायद वो 25 गुना भी हो जाएगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम केमिकल जो जहर पैदा हो रहा है, जिसके कारण पंजाब जैसी जगहों में कैंसर ट्रेनें चल रही हैं, बाकी जगह भी जो है ना लोग बाग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। क्या आपको ये मालूम है कि आज जो है भारत का, हमने कहीं पढ़ा है, जो दूध का कंजम्पशन है वो 64 करोड़ लीटर है, ऐसा मैंने पढ़ा है, और हमारा प्रोडक्शन जो है वो 16 करोड़ लीटर है। इसका मतलब है 48 करोड़ लीटर दूध, मतलब जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इससे 3 गुना ज्यादा जो दूध है वो केमिकली यूरिया आदि से प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके बारे में एक रिसर्च कह रही है कि यदि आप जो है 4 साल तक ऐसे केमिकली मेड दूध को पिएंगे तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। तो पहला सोर्स आपने केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड के कारण कैंसर हो रहा है। फिर हमारे विद्वान लोग हर चीज में हार्मोन्स दे रहे हैं, तो गायों में हार्मोन्स, भैंसों में हार्मोन्स, बकरियों में हार्मोन्स, मुर्गियों में हार्मोन्स, फलों में हार्मोन्स, सब्जियों में हार्मोन्स। तो द सेकंड सोर्स ऑफ द कैंसर इज हार्मोन्स। थर्ड, जो आपको केमिकल मॉलिक्यूल की मेडिसिन दी जा रही है, none of the medicine is safe. Many of the medicines are so dangerous for human health. Many of them they are prohibited outside, लेकिन इंडिया में उन्हें फिर भी दिया जा रहा है। तो थर्ड बड़ा सोर्स है, that is the foreign molecules or harmful molecules which are being given as a medicine. तो आप जो है उनको खाके आप कैंसर भी हो रहा है और अपने जेब के जो है ना गाड़ी कमाई भी आप खर्च कर रहे हैं। और चौथा सबसे बड़ा कारण है जो केमिकली मेड मिल्क आप ले रहे हैं। यदि हमने इस चीज को अरेस्ट नहीं किया, नाउ ए संदेश टू युवा, यदि हमने इस पैटर्न को तत्काल अरेस्ट नहीं किया तो आने वाले 5 साल में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीय कैंसर से सफर करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपके फैमिली के 2 लोगों को कैंसर होगा तो तीसरा व्यक्ति उसे अटेंड करने के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या नहीं? हाँ जी सर। यदि घर के 2 व्यक्तियों को यदि कैंसर है तो उसे अटेंड करने के लिए तीसरा व्यक्ति लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या नहीं? यस सर, लगेगा। yes, इसका मतलब है कि 99% पॉपुलेशन विल बी बिजी विद द कैंसर और कैंसर रिलेटेड विविष्का। यदि 5 साल बाद यदि ये ग्राउंड रियलिटी होने वाली है तो हमारी एग्रीकल्चर का क्या हाल होगा, हमारी इंडस्ट्री का क्या हाल होगा, हमारी सर्विस जो है ना इंडस्ट्री का क्या हाल होगा, हमारा जो है ना कॉमर्स का क्या हाल होगा।
जहां हम एक और कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, ये समृद्धि लाएंगे, वो सब समृद्धि जो है हमारी एक बहुत बड़ी त्रासदी में कन्वर्ट हो जाएगी। कोरोना ने उसकी हल्की सी झलकी आपको दिखा दी। डू यू एग्री विथ मी? तो क्राइम फ्री भारत समस्या नहीं बताता है, समाधान लाता है। जैसे कि हर चीज में हमने समाधान लाया, तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि बिना सरकार के मदद के ज्वाइंट वेंचर के तहत हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग लाएंगे, जिसमें मेडिसिनल प्लांट होंगे, एरोमेटिक प्लांट्स होंगे, जिसमें हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होंगे, जिसमें फॉडर प्लांट्स होंगे। हम अपने गायों के लिए घास जो है ना खेत से नहीं लेंगे, पेड़ों से लेंगे, और पेड़ों को की ब्रांचेस को हॉरिजॉन्टल काटते जाएंगे। जब हम उनको हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस को काटेंगे तो वर्टिकली ऊपर बढ़ेगा। उस पेड़ के वजन को संभालने के लिए हमारी जड़ें गहरी जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाएंगी। तो ये जो वर्टिकल स्पेस खाली होगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर द वर्टिकल क्रॉपिंग। आपने यदि नहीं सुना है और सर्च करिए, गवर्नर हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने एक किताब लिखी है जो कि उनकी खुद के अनुभव के आधार पर उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बुलाया, उनके जो है ना एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के सभी कॉन्सेप्ट जो है ना बदल गए। उन्होंने बताया कि कैसे जीवामृत का यूज करते हुए हम इवन पहली फसल में बिना लॉस ऑफ प्रोडक्शन के हम जहर से केमिकल फ्री फर्टिलाइजर की तरफ जा सकते हैं, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर पे जा सकते हैं, और हमारा प्रोडक्शन लॉस भी नहीं होगा। और सेकेंड और थर्ड क्रॉप के बाद तो जो है ना हर साल जो है ना हर क्रॉप के साथ जो है ना 10-20% की ग्रोथ होगी। तो आम के आम, गुठलियों के दाम। हमारे जो केचुए अभी मर गए हैं या वो हो रहे हैं, वो सब जो है ना कीट जो है ना बाहर आ जाएंगे। आपको शायद ये मालूम होगा कि जो गाय है उसका गोबर में लक्ष्मी विराजित है। अब इसको साइंटिफिक भाषा में कहते हैं, गाय के 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, जो कि आपके लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं। और इसके कारण जो है ना पहली फसल में ही आपके जमीन की उर्वरकता ऊपर चली जाएगी। और यदि वो गाय जो कि दूध नहीं दे रही है, उसके गाय के 1 ग्राम, इसका मतलब है यदि 2 गायों को कंपेयर करें, एक दूध देने वाली गाय और एक बिना दूध देने वाली गाय, तो गोबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गाय गोबर नहीं दे, जो दूध नहीं दे रही है, वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जो केचुआ है, देखिए भगवान ने भारत को एकदम अलग तरीके से, अनूठे तरीके से गढ़ा है। संजीवनी आपके यहाँ पे है, सभी तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स आपके यहाँ हैं। आपके जो है ना गाय का जो दूध है वो अल्फा 2 वैरायटी का है, जो अमृत तुल्य होता है। आपके जो है गाय के गोबर में और मूत्र में, गोबर में लक्ष्मी जी और मूत्र में धन्वंतरी विराजित हैं। इन दोनों को मिला के हम अधिकांश चीजों को जो है ना पार कर सकते हैं। और ये इतना अच्छा है, देखिए जैसे पतंजलि में जो बिम है, पतंजलि का बिम इज वेरी वेरी पावरफुल बिम। इट इज मच मच बेटर देन केमिकली मेड बिम। उनके जानते उसमें क्या है, गाय के गोबर को जो जला के जो राख होती है, उस राख से वो बिम बनाते हैं। एंड मैं आपको चैलेंज करता हूं, उस बिम को और उस बिम को कंपेयर करिए, जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब है गाय जो है ना, एक चीज मैं आपको बताता हूं, मुझे एक प्रॉब्लम थी। मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मुझे मस्से हो जाते थे और वो सिर में होते थे। मैं जाता था स्किन स्पेशलिस्ट के पास, वो जो ना लेजर से हमारे मस्से जला देते थे। धीरे धीरे वो मस्से हमारे दाढ़ी पे भी आ गए। तभी किसी ने सलाह दी कि सर पतंजलि की शेविंग क्रीम बहुत अच्छी है। और जब हमने पतंजलि की शेविंग क्रीम लगाई, और ये कहते हैं कि जो मस्से आते हैं वो वायरस के कारण आते हैं, मैंने पाया कि मेरे दाढ़ी के जो है वो मस्से थे वो गायब हो गए। तो मैंने जो है पतंजलि की शेविंग क्रीम अपने सिर में लगाना चालू कर दी, तो मैंने देखा कि सिर के भी जो मस्से गायब हो गए। इसका मतलब है, ये बात आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। इसका मतलब है कि पतंजलि की जो शेविंग क्रीम है उसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि जिस वायरस से आपके मस्से हो रहे थे उसको मारने की क्षमता रखता है। इसका मतलब है हमारी जड़ी बूटियां, हमारा गाय का गोबर, ये असाधारण चीजें हैं।
हमारे युवाओं को इस ज्ञान को संधारण करके करना चाहिए। आज आपके जो साइंटिस्ट हैं उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको जो है ना विदेशों में सेमिनार के नाम पे बुलाया जाता है और अपना अपना अधपका ज्ञान बांटा जाता है, जो कि इस देश के लिए लाभकारी नहीं है। हमें अपनी एग्रीकल्चर कैसे बड़ा अच्छी करना है, इसको बाहर की तरफ नहीं देखना है। जो ज्ञान अभी हमारे पास ऑलरेडी है, वेदों में है, जो हमारे संज्ञान में है, हमें वहां वापस जाइए। आप जो है जहर को अमृत में कन्वर्ट कर पाएंगे और क्राइम फ्री भारत की जो वेरियस मॉडल्स ऑपरेंडीज हैं उसके माध्यम से हम ना केवल अमृत को पैदा करेंगे बल्कि अमृत को अमृत के भाव में बेच पाएंगे। उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जो खर्च है उसको कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में डालेंगे, और यदि हम आज ये माने कि 80% यदि खर्च आ रहा है, क्योंकि सभी दवाएं जो है ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सभी महंगे हो गए हैं, इसका मतलब है यदि वो हम उनका खर्च को अलग कर देते हैं, चाहे वो लेबर का खर्च हो, चाहे सीड का खर्च हो, चाहे फर्टिलाइजर का खर्च हो, और किसान को 1 MSP भी दे देते हैं, तो उसकी आमदनी 5 गुनी हो गई कि नहीं हो गई? जो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जो चीज जाएगी वो बाकी जगह से जो, क्योंकि जो बिकेगा वो 2 से 3 टाइम्स MSP पे बिकेगा, और विदेशों में वो 10 MSP से 100 MSP में बेचेगा, और भारतीयों को जो अभी एक्सपोर्ट क्वालिटी देखने की भी ना वो नहीं मिलती है, हम बेस्ट चीजों को खा पाएंगे, अमृत तुल्य चीजों को खा पाएंगे, और वो भी बहुत रीजनेबल रेट में इंडिया में, और उसी चीज को हम बाहर जो है बहुत अच्छे भाव में बेच सकेंगे। अब मैं पुनः एक क्वेश्चन पूछता हूं। हम लोग कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया था। अब मैं आपसे पूछता हूं, भारत सोने की चिड़िया क्यों था? क्या ये प्रोडक्शन के कारण सोने की चिड़िया था, या वो हर चीज को सोने के भाव से बेच पाता था इसलिए सोने की चिड़िया था? आप में से कोई जवाब देना चाहेंगे? आप सोने की चिड़िया इसलिए थे क्योंकि आप हर चीज ऐसी क्वालिटी की अमृत तुल्य बनाते थे कि आप वो सोने के भाव से बिकती थी। आप याद करिए, जो ढाका की मलमल जो हम बनाते थे, वो मलमल एक माचिस की डिब्बी में जो है ना एक साड़ी आ जाती थी और वो सोने के भाव से बिकती थी। एक जो है डॉक्यूमेंट मेरे ध्यान में लाया गया जो कि 1st सेंचुरी का है, ग्रीस का है। वो कहता है कि हमें भारत से अपना व्यापार कम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा अधिकांश सोना जो है वो बाहर भारत चला जा रहा है। तो सोने बचाने का केवल एक ही तरीका है कि भारत से व्यापार सीमित किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोडक्शन के कारण, ओवर प्रोडक्शन के कारण जो है हम समृद्ध नहीं थे। हम हर चीज को सोने के भाव में बेच पाते थे, इसलिए हम समृद्ध थे। और हम सोने के भाव में इसलिए बेच पाते थे क्योंकि हमारी हर चीज अनूठी थी। वो सब चीजें आज भी अनूठी हैं। हम अपने युवाओं का आह्वान करते हैं कि आओ हम उस टेक्नोलॉजी को भी बनाएं, आओ हम वो सब व्यवस्था को स्थापित करें और अपने देश को जो है समृद्धशाली बनाएं। हम जो है फ्रीबी के उससे अपने देश को बाहर निकालें। यह एक साजिश है जो आपको गरीब रखना चाहती है, क्योंकि जब आप गरीब रहेंगे तो आपको फ्रीबी बांट के, आपको दारू बांट के, आपको साड़ी बांट के आपका वोट खरीदा जा सकता है। यदि आप समृद्ध होंगे तो आप वोट नहीं खरीदा जा सकता है। इसी के साथ जो है मैं अपना जो है जो उद्बोधन है जो यूथ के लिए मैंने स्पेशली एज ए एनर्जी फॉर देश के निर्माण के लिए कैसे एनर्जाइज किया जाए युवाओं को, एक मेरा प्रयास था। अब मैं चाहूंगा कि आप इसमें क्वेश्चन पूछें और मेरा पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से है कि क्या मैं अपने अटेम्प्ट में सफल रहा हूं? क्या जिस एनर्जी की बात मैं कर रहा था, क्या छोटी सी एनर्जी, क्या छोटी सी ऊर्जा आप लोग महसूस कर रहे हैं क्या? सर काफी ज्यादा कर रहे हैं और खासकर बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्टिंग से ही सर ऐसा बोरिंग कभी भी नहीं हुआ, हम काफी इंटरेक्टिव लगा सर। लगभग 1 घंटे से आप बोल रहे हो, 1.5 घंटे से, तो सर बहुत बढ़िया और सर काफी कुछ सीखने को मिला। सर अब क्वेश्चन सेशन राउंड होगा, उसमें हम आपसे सर कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे सर, प्लीज। मेरा पहला क्वेश्चन है तो क्योंकि सर आप क्राइम फ्री भारत मिशन से हैं और सर इसमें क्या है कि आपने बहुत कुछ बताया आपने कि थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे क्या आपका? थोड़ा सा वॉइस की वॉल्यूम थोड़ा सा कम जा रहा है, प्लीज इंक्रीज योर वॉल्यूम। हाँ जी सर, हाँ जी।
सर 1 मिनट। क्या? हाँ जी सर, नाउ इट इज क्लियर। या सर चूंकि आप क्राइम फ्री भारत मिशन के प्रेसिडेंट भी हैं और फॉर्मर डीजीपी भी रह चुके हैं, तो सर आपने काफी कुछ बताया है कि किस तरह से हम क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने वेबसाइट का भी उस बताया कि आप वहां जाकर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि सर आपने अपना नंबर भी पब्लिकली किया, जो कि सर काफी डेयरिंग डिसीजन है, हालांकि कोई नहीं करता। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है सर, क्या होता है ना कि कहीं भी हम घर पे होते हैं चाहे गांव में होते हैं, सर कभी कभी ऐसा होता है कि अननोन नंबर से कोई कॉल करता है जिसका कोई सा डेटा नहीं होता और वो हमें धमकी देते हैं। चाहे बहुत ऐसा कंप्लेन मैंने खासकर भी अभी ऑब्जर्व किया पिछले 2-3 दिन में, चाहे पहले भी काफी मेरे से ये पूछते हैं, क्योंकि वो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा पहला इनिशिएटिव क्या होना चाहिए। देखिए, हमारा पहला इनिशिएटिव होना चाहिए कि हम विक्टिम को जो है हर जगह भागने के लिए मजबूर ना करें। अभी क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे हर जगह भागना पड़ता है और उसका कोई सुनता नहीं। यदि आप जो है थाने जाते हैं, थाने में बैठा हवलदार रमेश सिंह आपको भगा देता है, तो आपके प्रति अपराध घटित हुआ है। ये रूल ऑफ लॉ है, हम संविधान से और कानूनों से जो है ना गवर्न है। आपको भगाने का किसी को साहस नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि पीड़ित क्यों भागे, इसलिए हमने सेक्शन 39 सीआरपीसी का आपको समझाया है कि हम में से हर व्यक्ति को कानूनी अधिकार प्राप्त है, बल्कि अधिकार ही प्राप्त नहीं है, बल्कि हमको जिम्मेवारी दी हुई है, और वो भी खतरनाक ढंग से दी है कि यदि हमने उस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया तो हम इनोसेंट हैं, ये सिद्ध करने की भी हमारी जिम्मेवारी है। ऐसी पावरफुल जिम्मेवारी के बावजूद भी हम लोग इस चीज का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए क्राइम फ्री भारत जो है ना पूरा पोर्टल ऐप बना रहा है, सो दैट आपको बिना भटके हम उस सर्टेनिटी के साथ आपको वो चीज दिला पाए। और हमने उसको दिलाने के लिए 5 चीजों का यूज किया है। हमने लॉ का यूज किया है। लॉ में 5 सेक्शन है। एक 39 सीआरपीसी के तहत आप रिपोर्ट करेंगे, राइट, तो आपको विक्टिम होने की जरूरत नहीं है। और विक्टिम भी यदि मुझे कहता है तो फिर विक्टिम को हमें वहां ले जाने की जरूरत नहीं है। हम विक्टिम के बिहाफ से कंटेंट के साथ हम सेक्शन 39 में सीएफबी क्राइम फ्री भारत का जो पोर्टल है, भारत की जो वेबसाइट है, भारत का जो ऐप है, वो उसे जाके जो है ना थाना प्रभारी को ले जाए, राइट। तो कानून में 2 ही धाराएं हैं जिसमें पुलिस को जो है ना कार्रवाई करना होती है। एक होता है सेक्शन 154 जिसके तहत एफआईआर रिपोर्ट होती है, और दूसरा सेक्शन होता है 154(3) सीआरपीसी, जिसमें यदि थानेदार आपकी रिपोर्ट नहीं सुनता है, एसएचओ आपकी रिपोर्ट नहीं सुनता है, तो एसपी को बहुत वाइड पावर दिए गए हैं कि वो आपकी रिपोर्ट को एंटरटेन करेगा, वो ऑफेंस रजिस्टर कर सकता है, वो खुद चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और इसको इतने ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं कि उसे उस थाने मतलब एसपी को उस थानेदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपने हमेशा देखा होगा, आपकी एक शिकायत ये भी रहती है कि जिसने हमारी बात नहीं सुनी, जिसकी हमने शिकायत की, हमारी शिकायत उसी के पास पहुंच जाती है। सेक्शन 54(3) इतने असीमित पावर एसपी को देता है कि वो आपकी जांच उस थाने में उसे भेजने की जरूरत नहीं है, वो अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को जांच दे सकता है, और जिस सबऑर्डिनेट को वो जांच मार्क कर देगा उसे आपके उस प्रकरण में थाना प्रभारी के समस्त कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। मतलब यदि मान लो एसपी ने एक हवलदार को यदि जांच दे दी, तो वो हवलदार जो है वो आपके केस के लिए, जिस केस में आपके का ज्यूरिडिक्शन बनता है, उसके थानेदार के सभी, उसके एसएचओ के सभी पावर उस हवलदार को प्राप्त हो जाएंगे। तो दैट इज द सेकंड। थर्ड ये है कि यदि मान लो पुलिस वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है, राइट, तो तीसरा कानून है 156(3) में कोर्ट को पावर दिया गया है, और एक इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम बन गया है। तो क्राइम फ्री भारत कोशिश कर रहा है कि आईसीजीएस का यूज करके वो डिजिटली कोर्ट में पहुंच जाए। कि देखिए भाई, हमने एसपी को, एसएचओ को कहा, उसने हमारी बात नहीं सुनी, एसपी से कहा, उसने भी हमारी बात नहीं सुनी। अब हम ये कानून ने आपके ऊपर भी जिम्मेवारी सौंपी है अंडर सेक्शन 156(3). तो 156(3) में सेक्शन 190 के तहत जिसको ज्यूरिडिक्शन है,
राइट, 190 के तहत ही कैन टेक कॉग्निजेंस एंड ही कैन डायरेक्ट पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसमें एक और एडवांटेज है, सामान्य तौर पर कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंटरफियर विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस, लेकिन यदि आपने 156(3) के तहत रिपोर्ट की है तो कोर्ट को एक्स्ट्रा अधिकार प्राप्त हो जाता है, इट कैन सुपरवाइज इट। देन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्शन है, सेक्शन 482 सीआरपीसी का, जो कि हाई कोर्ट पर जिम्मेवारी सौंपता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, जिसका सम टोटल ये है कि यदि कोई संज्ञेय अपराध हो तो पुलिस को कोई डिस्क्रिशन नहीं है, पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। कुछ केसेस में यदि जांच की आवश्यकता है तो जांच इस बात की जाएगी कि संज्ञेय अपराध हुआ या नहीं, शिकायत की जांच नहीं की जाएगी। एक बार आप इस निष्कर्ष में पहुंच गए कि संज्ञेय अपराध हुआ है तो आप उसकी आपको एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, राइट। तो हम कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में कोर्ट में भी जाएगी सीएम की। तो ये हो गया कानूनी। फिर अब जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली थानेदार से ऊपर लेके जो है डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, इतनी सारी हायरार्की, राइट। फिर होम डिपार्टमेंट, राइट। तो इन सब की भी प्रशासकीय जिम्मेवारी है। तो क्राइम फ्री भारत सबका जो है ना लोड बट जोड़ता जाएगा, कहेगा साहब इसमें भी कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे 1000 केस पहले भी नहीं कार्रवाई हुई है, ये आपकी प्रशासकीय जिम्मेवारी है, आप इनकी जिम्मेवारी निर्धारित करो। अभी आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप अपने लिए भटकते रहते हैं। यदि 1000 लोगों के साथ ऐसा हुआ, लाख लोगों के साथ ऐसा हुआ और वो लाख केस एक साथ करके कोई उसको भेजेगा तो बहुत ज्यादा समय तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन ना हो, ये संभव नहीं होगा। जब एसपी को लगेगा कि उसके सिर पे गाज गिरने वाली है तो वो थानेदार को ठीक कर देगा। जब डीआईजी को लगेगा उसके सर पे गाज गिरने वाली है तो वो एसपी को ठीक कर देगा। यदि आईजी को लगेगा उसके सिर पे गाज गिरने वाली है तो अपने नीचे के सभी लोगों को ठीक कर देगा। डीजी को लगेगा उसके सर पे गाज गिर रही तो बाकी सबको ठीक कर देगा। सो वी विल बी इन पोजीशन टू ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो पहले हमने क्या बात की, लीगल अकाउंटेबिलिटी। दूसरी बात हमने क्या की, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की। अब तीसरी अकाउंटेबिलिटी है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, राइट। लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी क्या है कि हमारा प्रतिनिधि जो है वो सवाल पूछ सकता है। तो क्राइम फ्री भारत सब चीजों को कंपाइल करके खुद क्वेश्चन बनाएगा। कौन बनाएगा? हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ भेज देगा। वो जो मेंबर ऑफ अपोजिशन है या एमएलए जो कि सत्ता पार्टी का नहीं है, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। यदि उसको इतने रिकॉर्ड के साथ चीजें मिल जाएं तो वो तो जो है ना सत्ता पक्ष की ऐसी कम तैसी कर देगा। और सत्ता पक्ष इस बात के लिए, चाहे उसके प्रश्रय में ही जो है ना वो सिस्टम ऐसे गंदा काम कर रहा हो, लेकिन वो विवश हो जाएगा कार्रवाई करने का। और जब कार्रवाई करने के लिए विवश होगा तो सिस्टम जो है ना रूल कंप्लायंट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। और सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। तो क्राइम फ्री भारत उस कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को भी लेके आएगा। अब वो आप पूछना चाहेंगे कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, तो हम आपको बताना चाहते हैं जो भी सरकारें हैं जो संविधान में बंधी हुई हैं, इसमें एक शेड्यूल 7 है जो अधिकार और उत्तरदायित्व को जो है बांटता है। इसमें 3 सूचियां हैं। एक सूची है लिस्ट 1 जिसको केंद्र सूची या सेंट्रल सूची कहते हैं। उसकी लिस्ट 2 है जिसको स्टेट लिस्ट कहते हैं या राज्य की सूची। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब है पहली लिस्ट में केवल भारत सरकार को कानून बनाने का हक है। दूसरी लिस्ट में जो है, हमने जो कानून की बात कही थी ना, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, वो जो है लिस्ट 1 का जो है शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 में 65C एंट्री का हमने उपयोग किया था, राइट। अब लिस्ट 2 में 2 एंट्री सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे तो बहुत सारी है उसमें, लेकिन लिस्ट 1 कहता है, लिस्ट 2 की जो है पहली एंट्री है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के गिरने के कारण आप याद करें, बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद जो है ना 3 सरकारों को गिरा दिया गया था। मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान किस व्यवस्था के तहत कि इनका एंट्री 1 में जो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी थी उसका वो निर्वहन नहीं कर पाए। हैंस इट इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल्योर के लिए संविधान के आर्टिकल 356 में
ऐसी सरकारों को बर्खास्त करने का, जो है ना डिसमिस करने का प्रावधान है। तो इन 3 सरकारों को लिस्ट 2 की एंट्री 1 के तहत डिसमिस किया गया था। अब इसी की लिस्ट 2 की एंट्री 2 है पुलिसिंग, और पुलिसिंग का जो मूल इस कार्रवाई है वो FIR है। तो यदि आपकी FIR ही दर्ज नहीं हो रही है, और यदि हम सब चीजों के साथ जो है ना कहें कि साहब 10% केस भी रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, विवेचनाएं ठीक ढंग से नहीं हो रही हैं, अरेस्ट ठीक ढंग से नहीं हो रही हैं, तो इस सरकार को डिसमिस किया जाए, तो आप कहेंगे कि साहब कैसे करेंगे आप ये? तो संविधान में व्यवस्था है कि भारत सरकार का एक प्रतिनिधि, जिसे आप गवर्नर कहते हैं, उसे हर महीने एक रिपोर्ट भेजना होती है, और उस रिपोर्ट में उसे ये भेजना पड़ता है कि सरकार कैसे चल रही है, क्या संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है। अब हम क्राइम फ्री भारत ये सब पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नर के पास भेजेंगे, और गवर्नर से प्रार्थना करेंगे कि साहब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेल्योर है, हमारी सरकार जो है ना अपराधों का पंजीयन नहीं कर रही है, उसकी हमारी पुलिस जो है ना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, हमारी जो है पूरी व्यवस्था फेल हो रही है, इट इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो आप कहेंगे कि भाई गवर्नर क्या आपका रिश्तेदार है, वो आपकी बात क्यों मानेगा? तो फिर हम एक PIL के माध्यम से गवर्नर के ऊपर भी जोर डलवा सकते हैं कि इतने सारे तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी है, तो आपने क्यों जो है संवैधानिक फेल्योर की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को नहीं भेजी? हो सकता है कि 1, 2, 5, 10 बार ना चले, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक ना हो, लेकिन यदि हम इस काम में डिजिटली लगे रहेंगे क्राइम फ्री भारत के तहत, तो मैं आपसे पूछता हूं, यदि एक सरकार भी पुलिसिंग ठीक ढंग से ना करने के कारण यदि ध्वस्त हो जाएगी, तो आपको FIR लिखने की प्रॉब्लम होगी क्या? ना आपकी FIR की प्रॉब्लम होगी, और बाकी जो 5 सर्टेनिटी क्राइम फ्री भारत कह रहा है वो तो 1 महीने में ही आपको न्याय दिला दे रहा है। तो आप ये बात मान रहे हैं कि मैंने आपके प्रश्न का ठीक ठाक जवाब दे दिया है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी नहीं तरह तो आप जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछिए मुझसे। नहीं सर, हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरह से आंसर मिल गया, थैंक यू सर। ओके, मैं चाहूंगा कि आप जितना से जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज इसमें युवाओं के लिए एक मैसेज है। हमने कोशिश की है कि युवाओं को एक एनर्जी मिले, हमने कोशिश की है कि हमारे जो डिफरेंट वो हैं उसमें आप लोग जुड़िए, क्योंकि हमारा जैसे यदि हम ये बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमारा एक और है एक्सीडेंट फ्री ट्रैफिक लाइट फ्री भारत। मतलब भारत में जो है इतना जो है रेवेन्यू जनरेट होगा और पुलिस लगेगी नहीं, और ग्राउंड पे एक्सीडेंट होगा नहीं, और फिर भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यदि मैं उसको समझाऊंगा तो काफी देर लग जाएगा। हम अन्य अवसरों पे यदि आपकी यूनिवर्सिटी चाहेगी तो हम हर एक पॉइंट पे जो है ना एक सीरीज चला पाएंगे, और हम युवाओं को जो है ना ब्रीफ करेंगे, और जो हम आपको ब्रीफिंग कर रहे हैं उसके वीडियो जो है विल बी अवेलेबल ऑन क्राइम फ्री भारत। तो बाकी युवा भी देख पाएंगे जिनको डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हमें धैर्य रखना है, हमें अपने अंदर की एनर्जी को संचालित करना है, नंबर 1, 2। नंबर 3, हमें अपने आप को असहाय नहीं मानना है। नंबर 4, हमें सिस्टम जो है IT ड्रिवन बनाना पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो है टू बी वेरी फ्रैंक, हल्का सा 2 मिनट लगेंगे क्योंकि मैं समझता हूं कि मुझे युवाओं से ये बात बताना चाहिए, आप लोग कभी स्वतंत्र हुए ही नहीं है। आपको लगेगा कि स्वतंत्र नहीं हुए तो क्या हुए हैं, फिर 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को एक एक्ट पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 17 जुलाई 1947 में। कहां पारित हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसका नाम था एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो आपका जो है जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस वो किस नियम के तहत मिली है? जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ है। आपके संविधान में कहीं भी इस नेशन वर्ड का यूज नहीं किया है। यू आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली एज ए स्टेट। इसके तहत 2 डोमिनियन स्टेट क्रिएट हुई थी, एक को पाकिस्तान कहते हैं, दूसरे को हिंदुस्तान कहते हैं, राइट।